Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I think I'm audible to all of you. Yes. Good afternoon. Yes. On behalf of ISTD Kota chapter, Gyandwar Education Society Kota, and Bharadwaj Foundation's Jaipur, I feel so privileged to welcome you all for today's highly informative session on importance of artificial intelligence and robotics. I take the proud opportunity to welcome all our eminent experts and renowned speakers, Dr. Arvind Agrawal, President, and Dr. Pooja Agrawal, Vice President, respectively, for Arya Group of Colleges, Jaipur. I welcome Ms. Anita Chauhan, Chairperson, ISTD Kota Chapter, and founder of Gyandwar Education Society, Kota, Sir P.M. Bharadwaj, sir, founder and president of Bharadwaj Foundations, Jaipur, as moderator and host for today's webinar. I welcome all the participants once again to the session. Kota Gyandwar, in association with ISTD, has been providing a regional as well as nationwide platform to create an awareness for spreading education and knowledge about the best education system to the beneficiaries, as we firmly believe that a basic know-how of exaction and requisition always helps an individual to develop one's thought process to take better decisions to prepare him to accept the ongoing changes by overcoming their respective inertias. As we all know, New India after COVID-19 period is entering a new era of digital India. A deep knowledge of artificial intelligence and robotics is a must. This is a stream full of opportunities and solutions definitely to several upcoming problems in almost all the sectors, be it education, hospitality, medical, sales profession, army, and whatnot. So here, I would like to invite Ms. Anita Chauhan to welcome our today's expert panelists who would enrich us with the detailed understanding of this highly appreciated, not much known field. Ma'am, over to you, please. Anita ma'am, please, over to you. Anita ma'am, over to you, please. Yeah, Namaste dosto. A very good afternoon and Ram Ram to you all. I formally welcome all the dignitaries, Dr. Arvind Agrawal, Srimati Pooja Agrawal, Shri PM Bharadwaj, the members of Indian Society for Training and Development, Kota Gyandwar Education Society, and Bharadwaj Foundation, Jaipur, in this extremely informative and enriched webinar today, जिसका आयोजन ISTD and Kota Gyandwar द्वारा भारद्वाज फाउंडेशन के साथ किया गया है. Dosto, there is no question that artificial intelligence is one of the most important technologies being developed. As powerful as it is, people still have a lot of questions about it, like how can it be used and what impact will it have? In this webinar, we will answer commonly asked questions on artificial intelligence because this field is always changing. You have to learn more about AI, क्योंकि यह जल्द ही आपके काम और आपके आसपास के समाज और जिस दुनिया में आप रहते हैं को प्रभावित करना शुरू कर देगा. At the same time, always make sure to verify the information that you encounter about AI, because there is a lot of misinformation about artificial intelligence is out there. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचा जाना भी लोगों को कई बार परेशान कर देता है, खासकर यदि वे वरीड है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का के जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ेगा, कई इन इंटेलिजेंस टूल्स के कारण वो अपनी नौकरी ही ना खो दें. इन आशंकाओं की वजह से कई बार आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ और गलत सूचनाएं भी हमें मिलती हैं जो एआई के बारे में फैल जाती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहले से ही कई उद्योगों में इस्तेमाल किया जा रहा है, बट as you know, because it is developing so quickly, it can be hard for us to imagine the eventual impact it will have on our world. The impact of artificial intelligence will be greater and will happen sooner than we can prepare for. It will likely change or disrupt just about everything we experience in our lives and in society as a whole.
कायदे से देखा जाए तो ये कई मायनों में सकारात्मक प्रभाव ही डालेगा और ये उन लोगों के लिए नए अवसर जरूर पैदा करेगा जो एआई टूल्स को अपनाने के लिए मेंटली और फिजिकली हर तरह से तैयार हैं, और those who believes in following the trends in as change happens। लेकिन ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली तनावपूर्ण होगा, निराशाजनक होगा और उनको भ्रमित भी करेगा जो इस चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनदेखा करते हैं या फिर पूरी तरह से उसके लिए अभी तक तैयार ही नहीं है, जो कि एआई के माध्यम से बदलाव आएंगे समाज में उन्हें अपनाने के लिए। तो आज के इस वेबिनार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इसके एप्लीकेशन के संबंध में विस्तृत चर्चा होगी। आपने अभी देखा भी होगा जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है उसके अंदर भी हमने बात किया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक मतलब एआई ये इनेबल्ड एजुकेशन के ऊपर भी बाकायदा में ऑप्शन दिया गया है और हम आगे हमारा सिस्टम है वी विल डेफिनेटली फॉलो। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज के आगामी जो 90 मिनट आपके साथ में आप यहाँ बिता रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं, इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई रियली वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस वंडरफुल शो। थैंक यू। ओवर टू यू माधवी। Very good afternoon to everybody. Sorry I joined late. डॉक्टर अरविंद जी आ गए अपने बीच में। डॉक्टर अरविंद जी, प्रेसिडेंट ऑफ आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अनीता जी जी सर, गुड आफ्टरनून। वेलकम डॉक्टर अरविंद अग्रवाल। नाउ आई रिक्वेस्ट माधवी टू टेक ओवर द सेशन। माधवी जी आपका माइक चालू कर लें प्लीज। हाँ बोले माधवी जी। मेरा ख्याल थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कुछ ही सेकंड में चालू हो जाएगा। थोड़ा सा ये नेटवर्क की I think there is some technical flaw and अनीता जी या तो आप इंट्रोडक्शन दे दें सर का और मैम का, आप बोल दें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ नेटवर्किंग उस एरिया में प्रॉब्लम हो गई है तो, क्योंकि अपने बीच में मुझे लग रहा है आरपी दहिया साहब भी हैं इस प्रोग्राम में और अपने बीच में आरपी गुप्ता साहब भी हैं। काफी लोग मैं आपको यहाँ पे आप सभी को थैंक यू सो मच सर भारद्वाज सर। मैं समय लूंगी, सिर्फ 1 मिनट और लेना चाहूंगी बिफोर आरपी टेक ओवर वंस अगेन। इट इज we have so many eminent people pan India joining us today. इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से हमारे बीच में कई सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं और जैसा कि सर ने भी बताया कई यूनिवर्सिटी से भी हमें लोगों ने ज्वाइन किया। डॉक्टर आरपी गुप्ता सर, सौंदर्यराज जी फ्रॉम चेन्नई एंड योगेश उपाध्याय जी, द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ISTD also national ISTD, and then I have Dr. RP Dahiya also. So we welcome each one of you. Madhvi. Yes, thank you, ma'am. I think there was some net issues with this. I would please like to take it from the beginning. I would like to introduce you all to our highly distinguished, renowned panelist speaker, Dr. Arvind Agarwal, President, Arya Group of Colleges, Jaipur. Arya Group of Colleges offers a wide range of undergraduate and postgraduate courses, namely BTech, MTech, BBA, MBA, B.Pharma, M.Pharma, BSc, BCom, and BA. The state-of-the-art infrastructure makes them the prominent engineering educational group in the state of Rajasthan. They are considered as the leaders in the education of engineering, as their 4 engineering colleges are situated in Jaipur with a proud record of highest placements in the state of Rajasthan. For the last 18 years, Dr. Agarwal has been working interminably to achieve milestones in establishment of Arya Group of Colleges
as an eminent educational group of India. By qualifications, he is a medicine doctor and meritoriously completed his MBBS from the University of Calcutta. Thereafter, he practiced in eminent organizations like Wellington Hospital in Delhi and AIIMS New Delhi for a couple of years. He pursued his MD in psychiatry from North Shore Hospital near Boston, USA. In the year 2000, he returned to India and established Arya Group of Colleges. Taking the cause of Beti Bachao, Beti Padhao forward, he had proactively taken the initiative by sponsoring free engineering educations to 201 girls in 2016, 17, and 18, with a vision to take it further. Dr. Agarwal's incredible achievements have been recognized by renowned national and international personalities. He is felicitated by late Dr. Pranab Mukherjee, ex-President of India, as Visionary Entrepreneurs of India, Mr. Bill Clinton, ex-President USA, for his contribution towards providing nutritious meal to the students of government schools in association with Akshay Patra Foundation in 2014. His leadership of colleges was awarded top private institute in North India by Jagran Josh under engineering category in March 2019. And so with his technical supervision, bionic hand has been developed by Arya Institute of Engineering and Technology. He has been felicitated by Blizzard Grant of United Nations on UN Public Service Days. He has been conferred with Seva Ratna from Rajasthan State Commissioner for Minorities, Visionary Leader of Year 2018 by CEGR, Indian Edupreneurs Award by Brands Academy, Lifetime Achievements Award by Leadership and Promotion Council of India, and the list is endless. I feel so honored to present you all such a terrific and outstanding personality, Dr. Arvind Agarwal, to enhance our wisdom to today's most called upon technical field of artificial intelligence and robotics. In continuation with this, I would also like you to introduce with our next eminent speaker. Thank you, sir. Madam, for giving thank you very much, sir. I would also like to introduce to you all our next eminent speaker, Dr. Pooja Agrawal, Vice President, Arya Group of Colleges, Jaipur, Director, Deco Networks Private Limited, and Director, Pinaki Build Home Private Limited. Dr. Pooja Agrawal is an eminent scholar and a highly qualified academician. Her varied experience elicits a rich splendor of her candidature. She is a gold medalist from Punjab University in her LLB, awarded by Vice President of India. She has been conferred with several other recognitions from eminent personality of high repute, including former Prime Minister and the then Finance Minister, Dr. Manmohan Singh. She has a deep passion for promoting education across society and India in the field of technical education. She is a double graduate in Commerce and Law, followed by which she pursued her master's in Business Administration. She achieved All India 17th rank for her CS Foundation. She completed her PhD in HR from USA. She was also sponsored by Ministry of External Affairs for an exchange program with Stockholm University, Sweden, and School of Oriental and Asian Studies, London, wherein she represented India as a law student and started ideas and shared ideas on the international laws. She has been felicitated with Nari Shakti Award by Mrs. Kiran Kher Maheshwari, Ministry HRD, Government of Rajasthan, Best MSME Startup 2018 Award by Honorable Srimati Vasundhara Raje, the then Chief Minister of Rajasthan. Kurja Award in 2018 for commendable work in promoting and supporting the girl education, and the most promising women and entrepreneurs in the state of Rajasthan by Engineering Watchwide, a gala ceremony in New Delhi. With such a promising profile, I'd really like to present you all with a great pride, Dr. Pooja Agrawal, to appraise us all about artificial intelligence and robotics. Thank you, Madam. Thank you for a wonderful introduction that you have given. And good afternoon to all the eminent guests who are there for the session today. I need to talk about artificial intelligence or robotics or both? Every introduction is going on. Okay, sorry. I would just like to take an opportunity to introduce our moderators and hosts for today. PM Bharadwaj, sir, he is the founder president of Bharadwaj Foundation.
He has been awarded the National Level Motivational and Management Guru. He is member National Level Committee for Internship of All India Council of Technical Education, board member of Rajasthan ILD Skill University, Bharatiya Skill Development University. He had been Chief Coordinator, Rajasthan Chamber of Commerce and Industry and Chief Advisor of Jaipur Management Association. As a founder president of Bharadwaj Foundation, he has conducted more than 26 national level programs related to industry and educational institutions. I would also like to share a brief profile of Ms. Anita Chauhan. She is a dynamic professional with a rich and wide diversified experience of 20 years in the field of educational training and development, strategic planning, HRD, sales and marketing, business development, and relationship management. She started her career as an educationist and later switched over to the insurance sector. Starting from sales in Bajaj Allianz, she landed up as a territory manager at Reliance Life Insurance Limited and a proud recipient of Best Profit Center Maker. She was the founder president of Kota Gyandwar Education Society in 2013. It's an NGO dedicated in pursuit of empowering the financially challenged people with educations and trainings to encourage them to become the self-dependent and lead a reputed life in future. As we all know, she was also the founder member of ISTD Kota chapter in year 2007. She is vice president of Kota Development Forum and also an honorary member of Lok Adalat. She has been instrumental behind having a women wing of Bharat Vikas Parishad, Rani Lakshmibai Shakha in Kota, member of I-Bank Society of Rajasthan, Kota. She has been awarded the Kota Ratna Award and also nominated as a brand ambassador of Swachh Bharat Abhiyan at district level by Mayor Kota City. So now to carry on forward this session, I would please like to hand it over to Ms. Anita Chauhan for further panel discussions. Over to you, Anita ma'am. Thank you so very much, Madhvi. You have given a wonderful start for this, and because कोई भी हम काम करते हैं तो उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स का पूर्ण परिचय अगर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को देते हैं तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट एंड यू हैव डन इट सो नाइसली. थैंक यू. तो आज का ये वेबिनार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग आज रोबोटिक्स और इंटेलिजेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी बिकॉज थोड़ा सा कुछ टेक्निकल डिले भी हुआ. मेरे साथ तो मेरे मॉडरेटर साथ में है श्री PM भारद्वाज जी और मैं, हम दोनों मिलकर इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे. और PM भारद्वाज जी को सुनने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं. और सर अरविंद सर और पूजा मैम, आज हम लोगों ने वी विल बी हैविंग few set of questions we will be asking. The format will be this way only, and we'll keep it open for the audience also, so they will be able to post their questions to us, and then we'll be answering, you will be answering their questions also. There are, क्योंकि हम लोग सब लेमैन हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और कोविड क्राइसिस पे, कोविड पेंडेमिक की वजह से तो अब जब AI का इतना रोल बढ़ गया है, रोबोटिक्स और AI का रोल हमने आपका रोल काफ़ी बेहतरीन देखा भी है. तो मैं चाहूँगी कि हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भारतवर्ष में थोड़ा सा योगदान, थोड़ा सा मैं वर्ड गलत यूज़ कर दिया, एक बहुत ही बेहतरीन योगदान जो कि आपके माध्यम से आया है और जो मेरे पार्टिसिपेंट्स को भी एक मोटो पता चल जाए कि हम आज कितनी चर्चा कैसे करने वाले हैं. एक छोटा सा वीडियो मैं प्ले करना चाहूँगी. हमारे मॉडरेटर हेमंत जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी एक वीडियो हम प्ले करते हैं, देन वी विल बी स्टार्टिंग एंड दैट विल मेक द एक पूरा इसका एक मोटो हाई कर देगा सभी पार्टिसिपेंट्स को. हेमंत जी, वीडियो. हेमंत जी, आपका माइक चालू करें हैं तो आपका माइक बंद है. हाँ, भारद्वाज साहब, आप मेरे को होस्टिंग का राइट्स दे दीजिए. आपके पास अभी होस्टिंग राइट्स है तो मैं वीडियो रन कर दूँ. अनीता जी, आप ही को करना पड़ेगा, मैं इस बारे में बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं हूँ. आप जस्ट ऑलरेडी अ होस्ट भैया. हेमंत जी, यू आर ऑलरेडी अ होस्ट. नो राइट नाउ होस्टिंग. अनीता जी, आप खुद चला देना, आपको वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप खुद चला दीजिए वहां से. आपको भारद्वाज साहब एक काम करना होगा, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाना होगा.
देखिए Anyway, in the meantime, we'll do this thing. मैं भारद्वाज सर आपसे निवेदन करूंगी. You can just start. Let me tell you about भारद्वाज जी. भारद्वाज जी ISCD द्वारा आप उस वीडियो को सेट करें और बीच में मुझे द्वारा हमारे ट्रेनर्स डे, हमारे 50 वर्ष पूर्ण होने पर ISCD के गोल्डन जुबली ईयर हमने मनाया जा रहा है अभी. 1970 में स्थापना की गई थी, 10 अप्रैल 1970 में ISTD की, जिसका कि ये हम स्वर्ण जयंती वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो हम ट्रेनर्स डे के रूप में मनाया जाता है 10 अप्रैल को, जिसकी भारत सरकार को भी दिया गया है. और बहुत शीघ्र ही आप अपने एनुअल कैलेंडर में आपको भी पाएंगे कि ट्रेनर्स डे के रूप में जिस तरह से आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरह से यू विल बी हैविंग दिस ट्रेनर्स डे ऑल्सो. तो इस पे हमने लॉन्च किया था डायनेमिक डॉयंस अवार्ड. तो आई वुड लाइक टू जस्ट एड ऑन वन पॉइंट फॉर भारद्वाज जी, दैट भारद्वाज जी हैज बीन the very first recipient of our Dynamic Drawings Award for 2019 also. So over to you, Bharadwaj sir, to start with. Thank you very much, Anita ji. And we'll set up our video in the meantime. जैसे ही सेट हो जाए ना वीडियो, आप मुझे बता दीजिए. I'll be doing. हाँ, मैं साथियों, good afternoon to everyone. I am really very much happy that today we have very important webinar. And Anita ji, sadhuvat to you. When you discussed with me before few days that you want to organize a webinar related to artificial intelligence and robotics, and you also told me that during your visit you could see some wonderful work in Arya, and you told to request Dr. Arvind ji and Pooja ji. I am really thankful to Dr. Arvind ji and Pooja ji. They agreed. They are extremely busy. They have been doing wonderful work, but they agreed to spare their valuable time for this particular webinar. My sincere thanks to Anita ji for your thinking to organize such a wonderful webinar, and Arvind ji and Pooja ji to agree to participate in this webinar. मैं as a panelist एक और चीज मैं कहना चाहूँगा. देखिए, आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो भी कुछ वर्क हो रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेके, मैं उसके बारे में जब भी वहाँ जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा. और जब अनीता चौहान जी भी आई थी तब उन्होंने भी देखा लैब्स को, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसका जिक्र किया कि ये तो आज की रिक्वायरमेंट है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुझे कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं है. उनके प्रोग्राम में पता लगा कि चाइनीज रोबोट्स को दिखा रहे हैं, जबकि इंडिया में आर्या ने खुद ने बहुत सारे रोबोटिक्स बना लिए हैं, बायोनिक हैंड बना लिया है, DTM मशीन, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं. इतना बड़ा काम जब हमारे यहाँ अपने नेशन में हो रहा है, एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कमा रहे हैं वो ग्लोबल लेवल के इंजीनियर्स MBA बने हैं. उसके लिए ज़रूरी है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हैं उन स्टूडेंट्स को उनके बारे में पढ़ाया जाए. और मैं बहुत साधुवाद दूंगा डॉक्टर अरविंद जी को और पूजा जी को. देखिए, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस टाइम मैं ज़्यादा ना बोलूँ. मेरे लेक्चर तो होते रहते हैं. हाँ सर, बिल्कुल. और मैं इसलिए मेरा ये था कि अब मैं क्वेश्चन लेडीज फर्स्ट के हिसाब से पूजा जी से मैं थोड़ा सा आप क्वेश्चन चालू करता हूं अपने. इम्पोर्टेंस ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सर बहुत टेक्निकल डेप्थ में सर से क्वेश्चन पूछने हैं, इसलिए शुरुआत में पूजा जी से कर रहा हूं. पूजा जी, आप बताएंगे कि आज के सिनेरियो में रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है, इसकी स्टडी. थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर. इट्स अ प्लेजर. बहुत ही ब्यूटीफुली कंडक्टेड प्रोग्राम है. मैं एक लेमैन की भाषा में अगर बताऊं तो रोबोटिक्स क्या है. रोबोटिक्स बेसिकली इंजीनियरिंग की 3 फील्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल फील्ड, तीनों ही फील्ड्स को जब हम इंटीग्रेट करके रोबोट्स बनाते हैं, ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो ह्यूमंस की तरह रिपीटेड काम को कर सके, उसको हम रोबोटिक्स बोलते हैं. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो एडवेंट हुआ है पिछले 8-10 साल में, वो इतनी तेजी से हुआ है कि हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया कि हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम दूसरे देशों की तरह आगे नहीं निकल पाएंगे. रोबोटिक्स का जो सबसे ज्यादा यूज इस टाइम पे हो रहा है वो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. प्रोडक्शन जहां पर लार्ज स्केल पर हो रही है और रिपीटेड काम हो रहे हैं, असेंबली लाइन में ह्यूमन मैन पावर की जगह रोबोट्स को यूज करा जाने लग गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहां पर
एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं काम करने के दौरान। तो उन ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और बेटर प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी हम लोग निकाल सके। इसके साथ साथ आज के टाइम में रोबोटिक्स सर्विस सेक्टर में भी बहुत तेजी से आ रहा है। हम अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, हेल्थ इंडस्ट्री की, बहुत सारी छोटी सर्जरीज आज की डेट में रोबोट्स परफॉर्म कर सकते हैं। एक डॉक्टर 7 समंदर पार बैठकर अगर गाइड करे, और अपेंडिक्स का जैसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर का है, तो रोबोटिक्स को हम रोबोट्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनको हम लोग एक आर्टिफिशियल माइंड दे सकते हैं जिससे वो इस तरह की सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए जो आज के दौरान जो टेक्नोलॉजी ड्राइविंग फोर्स हम कह रहे हैं आ रही है, वो रोबोट्स की फील्ड में बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम लोग सिक्योरिटी के सेक्टर में देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। मिलिट्री में जहाँ हैजर्ड जॉब है वहां पर भी हम रोबोट्स का यूज कर रहे हैं। सो रोबोट्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इन द कमिंग 10 years। इसीलिए रोबोटिक्स की जो इम्पोर्टेंस है ओवर द इयर्स बढ़ने वाली है बहुत तेजी से। हेलो, यस, आ रही है आपकी आवाज? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बहुत अच्छा चल। हाँ जी सर। और मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, शायद बहादुर सर, अनीता मैम कहीं पे ऑक्यूपाइड हैं। अगर हम थैंक यू मैम, ये आपने बहुत ही, हाँ जी मैम, thank you ma'am, you have really spoken so well on this, and we will be further coming up with some more questions about this, and over to you Anita ma'am, please, for further questions. यस मैम। तो पूजा मैम, देर से छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हाउ विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंज द फ्यूचर? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप इसको 3 लेवल पे आंसर करें, इंडिविजुअली, हाँ जी, एज अ सोसाइटी, हाँ, फॉर बिजनेस। फॉर बिजनेस। मैम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हम लोग मशीनों को आने वाले टाइम में इतना दिमाग देने वाले हैं, प्रोसेसिंग, हम लोग उनको, एक तो इसमें डेटा चाहिए, डेटे के इनपुट से हम लोग उसमें प्रोसेसिंग कर कर एक ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे हम लोग डिसीजन जो ले रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट ले सके। अगर हम इंडिविजुअल या पहले ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर, फ्यूचरिस्टिक उस पे वर्क करता है। उनको प्रेडिक्शंस बहुत चाहिए होते हैं, उनको ये जानना कि आने वाले 10 सालों में किस तरह का रिटर्न आएगा, किस तरह के क्लेम्स आएंगे। उन सब चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो डेटा डाल रहे हैं उस डेटे को करंट डेट में प्रोसेस कर कर हम लोग एक ऐसा आउटपुट जनरेट करें जो कि हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। इसीलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट सिटीज में भी देखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं ऑटोमेटेड हाउसेस की, ऑफिसेस की, सिटीज की, तो वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंस आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है डेटा। जब हमारे पास डेटा अबंडेंस में है, और आज के टाइम में डेटा इज द न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। जिसके पास डेटा है उसके पास क्या कहते हैं, पैसा है। अगर आपने देखा होगा जियो ने फ्री लॉन्च करा था जब वो आया था मार्केट में, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव वॉइस भी फ्री था, ऑब्जेक्टिव था डेटा को सिक्योर करना। जब उसके पास करोड़ों लोगों का डेटा आ गया, वो राजा बन गया। दे कैन सेल ऑफ द डेटा टू anybody as per the need, and they can also have the marketing और remarketing, जो हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, वो भी इस डेटा के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर करी जा सकती है। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस की बात करें तो
जैसे मैं एक लीगल प्रोफेशन की बात करूं, लीगल प्रोफेशन में एक वकील आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली है। हम लोगों ने आज करंट डेट की केस स्टडीज को डाल दिया कंप्यूटर के ऊपर, उन्होंने फैक्ट्स को स्टडी किया, जजमेंट्स को स्टडी किया, कंप्यूटर ने उस डेटे को प्रोसेस किया और आपको बता दिया कि आउटकम या जजमेंट ये होना चाहिए। अमेरिका में ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, लोग यूज कर रहे हैं आने वाले टाइम में। इसलिए आपके प्रोफेशन टू प्रोफेशन ये डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल लेवल पर ये आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। लॉ का मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, इसी तरीके से डॉक्टर्स के लिए भी है, इसी तरह से अकाउंटेंट्स के लिए भी है कि आप डेटे को यूज कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे और आउटपुट कैसे देंगे। और सोसाइटी लेवल पे अगर हम बात करें तो जब ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ही मिलकर सोसाइटी की हम बनाते हैं या देश बनाते हैं। हम लोग डिजिटलाइजेशन की जब बात कर रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन में दुनिया मतलब हिंदुस्तान में तब होगा जब हम लोग सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी को, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, इसको इस तरह से जुडिशियसली यूज करें जो इवेंचुअली जाकर ह्यूमन मैनकाइंड के लिए या मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो। वैसे मुझे जो लगता है टेक्नोलॉजी इज मोर यूजफुल फॉर अस इन टर्म्स ऑफ the professional life, but when it comes to setting down of values and ethics, then there is no substitute for human emotions or sentiments, which will continue to play a very important role. The creativity of human mind, the sentiments and the emotions will continue to play a very important role in the coming years to differentiate man from the machine. I hope I have been able to answer the question. Thank you, Yes, perfectly, ma'am. Thank you so very much. Bharadwaj sir. Mr. PM Bharadwaj, you are taking next question or I'll take? Bharadwaj sir, you need to unmute. We just made Hemant Sharma ji host. Now Hemant Sharma ji host. Right sir, thank you so much sir. हाँ भारद्वाज सर। डॉक्टर अरविंद साहब से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा भाईनी खैंड जो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अंडर द लीडरशिप ऑफ विद टोटल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, जिन्होंने 24 घंटे में से 20-20 घंटे लगाए और एक भाईनी खैंड बनाया, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आज आप बताएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो अमेरिका में करीब 60 लाख रुपए का बना था। MIT और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने वर्क किया, जिसको आर्या ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी खाली 40,000 रुपए में, कोविड के बाद हो सकता है कंपोनेंट की वजह से कुछ कॉस्ट में वेरिएशन आया हो, लेकिन बहुत अच्छा एक बाइनिक हैंड जिनके हाथ नहीं है या एक्सीडेंट में जिन्होंने हाथ लूज कर दिया, दिमाग से चलने वाला हाथ डॉक्टर अरविंद जी ने बना लिया। मैं ये चाहूंगा कि इसके बारे में आप थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएं बाइनिक हैंड के बारे में, प्लीज। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, आपका माइक चालू करें सर, माइक बंद है आपका। Thank you Bharadwaj sir. Good afternoon to all the panelists. Bionic hand is हम लोगों ने जो बनाया वो it was our destiny. We were sitting with the DR Mehta ji at Jaipur Foot, उनके ऑफिस में बैठे थे, we were discussing कि हमें अब कुछ नया करना चाहिए, and there was a newspaper clip of one कॉलम की एक बायोनिक हैंड है, हार्वर्ड में 70 लाख रुपए का बनता है। तो दे वर डिस्कसिंग एंड वी वर लिसनिंग। तो मैंने आगे पढ़कर बोला कि वी कैन मेक इट, इट इज़ नॉट ए बिग डील, बट तो उन्होंने कहा आप बना सकते हो, तो हमने कहा हाँ बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने जो प्रोटोटाइप बनाया वो इट वाज बिल्कुल बनाया, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं आप हमें को पेशेंट ढूंढिए, आप पेशेंट के ऊपर आप ये बायोनिक हैंड लगाइए और फिर हम उसको वेट करेंगे और फिर इसको हम MOU करेंगे। तो देन वी सर्च ए पेशेंट, वो एक एम्प्यूटी मिला हमें और हैंड एम्प्यूटी था, तो उसको हमने कस्टमाइज उसका बिल्कुल हाथ का दूसरे हाथ की वो पाम ली, फिंगर्स का स्पेसिफिकेशन ली, जहाँ एम्प्यूटेटेड पार्ट था उसका कस्टमाइजेशन करा। एंड देन वी स्टार्टेड विद ए एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम
क्या होता है, जो ब्रेन से जो नर्व सिग्नल्स आते हैं एम्प्यूटेड एंड हैंड के एंड तक आते हैं, लेकिन वो तो नर्व सिग्नल्स हैं और ब्रेन अपनी भाषा में बोलता है, और हमारे को वो भाषा को कन्वर्ट करना था इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए, क्योंकि वी हैव पुट ए हैंड में हमने इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगाए, और वो हमने उसको एल्गोरिथम करा, सॉफ्टवेयर करा और कैलिब्रेट करा। फिर कैलिब्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एकदम से मुट्ठी बंद ना हो जाए, नेचुरल मुट्ठी बंद होनी चाहिए। कोई चीज उठा रहे हो तो आप क्रश ना कर दें, तो राइट काइंड ऑफ फोर्स यूज होनी चाहिए, राइट काइंड ऑफ पोस्चरिंग यूज होनी चाहिए। सब ऑल द 4 fingers and thumb should work in together. तो इट इज a huge challenge, हमें लगा 1 महीना लगा, एंड देन वी बॉट इट। डीआर मेहता साहब को दोबारा बुलाया हमने, पेशेंट के उनको पेशेंट दिखाया, फिर पेशेंट को हमने आर्टिफिशियल हैंड या बायोनिक हैंड बनाया था विच रन्स फ्रॉम द ब्रेन उनको फिट करा, फिर उनसे काम कराया, बेसिक 5-7 काम कराए, तो ही लाइक्ड इट। और उन्होंने कॉस्ट पूछी तो हमने तो अपनी कॉस्ट जो 35,000 रुपीज उस वक्त आई थी हमने बता दी, और देन ही गेट इसे इम्प्रूव करो, आई विल गेट इट ए टीम ऑफ 5 ऑर्थोपेडिक्स नेक्स्ट वीक। एंड अगर उन्होंने ओके कर दिया, क्योंकि डीआर मेहता साहब नॉट ए डॉक्टर, तो अगर उन्होंने उसे कह दिया ये ठीक है और इट इज ए राइट प्रोडक्ट, तो हम आपको जयपुर फुट और आप जयपुर हैंड के नाम से हमने इसे वो भी करा रखा है, IPRP करा रखा है। हमने उनको 5 डॉक्टरों को दिखाया और 5 डॉक्टरों ने सब चीज देखी, सब चीज वो करी, और उसने लिख कर भी दिखाया। लेफ्ट, वैसे उसका लेफ्ट हैंड था बट ही कुड राइट विद द लेफ्ट हैंड हिज नेम, थोड़ा बड़ा अक्षर में। तो दे रियली गॉट सरप्राइज कि हम 2 महीने में वी टुक द चैलेंज, वी मेड दी हैंड, हमने हैंड की शक्ल दी, उसमें मोटर फिक्स करे, और फिर हमने सारा प्रोग्राम लिखा टू कन्वर्ट द ब्रेन सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ वो अपने हाथ को कंट्रोल करे। उसकी हमने उसे प्रैक्टिस दी कि ही शुड डू द वर्क इन ए सच ए वे कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। आप उसको जो भी कमांड देते थे, जैसे उस वक्त हमारे हाथ में बुके था, आप बुके प्रेजेंट कर दो, बुके दे दिया, उसने कहा, हमने कहा आप यू सल्यूट टू द सर, तो उसने सल्यूट कर दिया। नाक खुजाओ तो नाक खुजा दी, लिख के दिखाओ तो लिख के दिखा दिया, पानी डालो, पानी डाल के पानी पियो, मतलब ऑल द वर्क ही कुड डू इट विद इन 10 मिनट। मतलब जैसे जैसे आप बोलते रहिए वो वैसे वैसे करता रहता था। आप कमांड दीजिए, उसका ब्रेन रिसीव करता था उस कमांड को, फिर वो बोलता था अपने हाथ को, और वो हाथ फिर उसको पूरा करके देता था। तो द सर्किट वाज कंप्लीट, एंड इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन आवर पार्ट कि जो चीज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में 10 साल से रिसर्च के बाद निकल कर आई, और लेकिन उनकी क्वालिटी और जो लुक है दैट इज वेरी नाइस। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ जयपुर फुट महावीर विकलांग समिति की ये थी कि भाई इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमें इसे दान देना है, मतलब यू हैव टू फिट इट फॉर फ्री। हम तो हम लोगों ने उनसे MOU इसलिए करा क्योंकि उनके कैंप्स बहुत लगते रहते थे, और वो कैंप्स में जयपुर फुट के लिए तो पेशेंट को लेते ही थे, और अगर हमने उनसे अप्रोच करा, सर हैंड के लिए कोई आए, किसी का हैंड एम्प्यूटेड हो तो आप हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको बना के फिर दे देंगे, 3D प्रिंट करके हैंड दे देंगे, एंड वी विल डू इट। तो दैट वाज ए गुड एफर्ट कि हमने बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल, बट टू ग्रैप्स इट एंड टू रिप्रोड्यूस इट एंड टू राइट ए एल्गोरिथम, तो खैर क्या दुनिया में कोई किसी को शेयर ही नहीं करता। गूगल जो एल्गोरिथम यूज करता है सर्च इंजन की, वो किसी को नहीं देता आज तक से वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इतनी एल्गोरिथम लिखी जाती हैं, तो कोई भी जिस फील्ड में कोई काम कर रहा होता है वो एल्गोरिथम नहीं देता है। तो एल्गोरिथम लिखना, सॉफ्टवेयर लिखना, उसके बाद कैलिब्रेट करना, उसके बाद उसको मोटर से सिंक करना, और उसके बाद ट्रेनिंग देना, इट इज ह्यूज चैलेंज, बट वी टुक इट एंड वी डू इट। एंड भारद्वाज साहब के सामने ही हुआ ये सारा किस्सा।
फर्स्ट मीटिंग इस भारद्वाज साहब ने ही कराई थी मेरी डीआर मेहता जी से। तो आई एम फॉर्चुनेट कि सर ने हमने को मिलवाया सर से, और हम उस वक्त सही टाइम पे सही जगह बैठे हुए थे, एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट बायोनिक हैंड, एंड आई टुक द चैलेंज देन एंड देयर ओनली कि आई कैन मेक इट, विदाउट एनी डाउट आई सेड इट, आई कैन मेक इट। तो दे वर सरप्राइज कि हम लोग तो आज पहली बार मिल रहे हैं, और हाउ कैन दे मेक इट, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की चीजें कैसे कर सकते हैं। मैंने सर इज ए टेक्नोलॉजी, एंड इफ यू गो इनटू द टेक्नोलॉजी वी कैन मेक इट। हमने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, और बहुत ही अच्छा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, और वी आर इन द प्रोसेस टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू जयपुर फूड, और बहुत जल्दी वहीं पे हम जो भी एम्प्यूटेड हैंड्स हैं वहीं बनाना शुरू करेंगे। तो इट इज, आई थिंक इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। विद इन 2-3 मंथ्स वी कुड मेड इट। भारद्वाज साहब ने फैसिलिटेट करा सब चीज़ें, उन्होंने लगे रहे तो हमने बना लिया। इट इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। डियर Glad, व्यूअर्स, sir. मैं एक चीज इसमें Glad, बोलना sir. चाहूंगा। मैं चाहूंगी भारद्वाज सर, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट्स को मैं वो वीडियो जरूर प्ले करूं जो आज हम बात कर रहे हैं बनाने हाँ, की। तो उसके पहले बायोनिक हैंड का 1 सेकंड के लिए बोलूंगा अनीता जी, क्योंकि ये नहीं तो लिंक खत्म हो जाएगा बायोनिक हैंड का। अमेरिका से एक टीम आई थी, डीआर मेहता जी ने भेजी, जब वो हैंड बन रहा था, जैसे सर ने कहा बहुत सारी स्टेजेस में था, बोले आप देखें और इनको थोड़ा सा बताएं। तो हार्वर्ड से टीम थी, उन लोगों ने आके जब देखा, फोटो खींचना चालू कर दिया, बोले आप ऐसा कर कैसे रहे हो, आप तो बहुत आगे निकल चुके हो। और उसमें फिर हमें रोकना पड़ा कि भाई पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उस टाइम अप्लाई किया था। तो ये वाकई इतना बड़ा वर्क है, मैं तहे दिल से सलूट कर रहा हूँ अरविंद अग्रवाल साहब एंड आर्या ग्रुप, आपकी लीडरशिप में। आप खुद इतना टाइम इसमें लगा रहे हैं, खुद डॉक्टर हैं, इनके डॉक्टर होने का बहुत बड़ा फायदा मिला कि डॉक्टर हैं, और इन्होंने हजारों इंजीनियर प्रोड्यूस कर दिए हर ब्रांच के, तो इन्हें फुल नॉलेज है। और ये जो प्रोडक्ट बना है, ये पूरे इंडिया में आज इतनी बार पेपरों में इसका आ चुका है, और आज हमारा सौभाग्य है कि बिजी होते होते भी अरविंद अग्रवाल साहब ने एग्री किया कि हमारी टीम को यहाँ ISTD भारद्वाज फाउंडेशन कोटा ज्ञान द्वार को अनीता जी ये बताएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ये रियली बड़ा आपने काम किया, बहुत बड़ा काम है, नेशन के लिए गर्व सब की। चीजें आपके सामने हुए। आई एम ग्लैड दैट यू वर देयर एंड आई गॉट अ चांस टू प्रूव माय सेल्फ। जी अनीता जी प्लीज। Yes, sir. Congratulations, sir. It's wonderful. Let us see this video now. So all the participants will also be able to see, because अभी हमारे पास demand है, can we show the picture of bionic hand? Video please, Hemant ji. जब तक वो वीडियो चलाए, मैं बताना चाहूंगा इसमें नेशनल लेवल के कुछ लोग बैठे हैं। आरपी दहिया साहब जो हमारे MNIT के अंदर डायरेक्टर थे, वो भी आज हमारे बीच में है यहाँ पर। और साथ में आरपी गुप्ता जी भी हैं जो ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जयपुर बंसल क्लासेस के ऑनर हैं, वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लगातार। मेरा सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दहिया साहब एंड गुप्ता साहब की आवाज है सर ये। ये अभी हमने साइबर क्राइम दिल्ली को दिया। ये देखिए पुलिस से ऑर्डर लेना कितना कठिन काम है, और ये जो रोबोटिक्स है ये सर ने बनवाया, और इसको साइबर क्राइम ने मतलब ले लिया, इसको बहुत बड़ी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको पसंद किया और खरीदा आर्या से, बहुत बड़ी चीज है ये।
सर एनीवे मेरे ख्याल से आप इसे रहने दीजिए आप। हेमंत सर, मुझे लग रहा है स्पीड की आपके यहाँ प्रॉब्लम है इंटरनेट में आपके एंड पे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बढ़िया चलता है, मैंने देखा है पहले इसको। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें। Please, I think we should continue with the topic and discussion. अनीता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बाइनिक एंड वाला पार्ट अपना पूरा हुआ। अब एक क्वेश्चन आप पूजा मैम से पूछें, फिर मैं सर से नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के लिए क्वेश्चन पूछूंगा। आप एक क्वेश्चन आप पूजा मैम से ले लें इन द मीन टाइम। अनीता जी। Yes, sir. Hello. Yes, आपकी आवाज आ रही है। Let's take a question from. I would request a question from Arvind Agrawal, sir. हाँ, please, please. Sir, देखिए AI is quickly creating large number of new jobs, no doubt about it. Or the biggest challenge is which is having enough qualified workers also to fill this position. So, sir, एक कोटा क्योंकि एक कोचिंग हब है, तो और अब कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ क्राइसिस तो हर फील्ड फेस कर रहा है, तो हम भी फेस कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस माध्यम से इस वेबिनार के माध्यम से एक नया एक जो बेहतरीन करियर ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं थ्रू फेसबुक लाइव। तो मैं जानना चाहूंगी सर, व्हाट आर द टिपिकल जॉब्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी वी हैव गॉट बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस। So we were the one of the first college to get this BTech branch in our college. So artificial intelligence, data science are interlinked, and as such कि जो भी data generate कर रहे हैं, every time we are working on it. अगर हम जैसे आज Zoom हमने ये मीटिंग करी है और Zoom मीटिंग का हमने एक डेटा प्रोड्यूस करा है, अब इसको हम अगर कहें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द वैलिडिटी एंड इसका आउटकम क्या है और लोगों को क्या इससे कितना मिला, तो अगर हमने पीछे हमारे पास जूम का डाटा हो, हम लोगों ने लगातार मीटिंग्स कर रखी हो और उसके पीछे हमारे पास इंडिकेटिव एल्गोरिथम्स हो, तो आज की आउटकम हम बता सकते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये आउटकम हम जो हम चाह रहे थे वो मिला या नहीं मिला, दैट एनालिसिस कैन बी डन। तो ये जो एनालिसिस है ना डाटा का, डाटा यू हैव टू पुट इनटू एवरीथिंग। अगर आप सपोज करिए मैं मेडिकल की बात करूं और मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ रेटिनोपैथी की बात करूं, क्योंकि रेटिनोपैथी में एक आर्टरी होती है एंड दैट आर्टरी इन पूरे ह्यूमन बॉडी में कोई अगर आर्टरी एक्सपोज्ड है और देखी जा सकती है तो वो आंखों के थ्रू रेटिना पे देखी जा सकती है। तो उसका हम डाटा इकट्ठा करते रहें। 40 साल की उम्र में डायबिटिक की पेशेंट की आर्टरी की क्या शेप थी, 41 साल में, 42 साल में, 43 साल में, 45 साल से 60, 70, 80, 90 साल तक लेते गए। हमने इतना डेटा हमने कर दिया और जब हमारा पेशेंट आया, एक्चुअली में पेशेंट आया 45 साल का, और हमने जब उसकी फोटो खींची या उसको हमने अगर हमने रेटिनोस्कोपी करी, रेटिनोस्कोपी करने के बाद जो उसका आर्टरी दिखाई दी, वो आर्टरी किस स्टेज ऑफ रेटिनोपैथी पे है, आगे जाकर ये ब्लाइंडनेस कर देगी या नहीं करेगी, या व्हाट इज द प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, हम कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज नॉट ए नेचुरल। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वी आर कैरिंग ए नेचुरल इंटेलिजेंस। हम भी देख के डॉक्टर्स हैं, हम भी देख के बता सकते हैं कि भाई आपकी आर्टरी क्लिक हो रही है, मतलब क्लिंकिंग शेप में आ रही है, तो आगे जाकर ये डायबिटिक की वजह से ब्लॉक हो जाएगी और आप अपनी आईसाइट खो देंगे।
लेकिन हमारी तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है और हम टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास वो कंप्यूटेटिंग पावर नहीं है, हमारे पास वो इतना डेटा नहीं है। लेकिन अगर यही हम चीज उसमें दे दें, कंप्यूटर को दे दें, और कंप्यूटर में लाखों करोड़ों लोगों का डेटा हो और लाखों करोड़ों लोगों की फोटो हो, तो मैच कर देता है। वो इतनी ज्यादा तेजी से कंप्यूटिंग स्पीड होती है कि वो मैचिंग आपको दे देता है, और जैसे ही मैच होता है वो आपको प्रिडिक्ट कर देता है। तो इन ए वे एवरीथिंग विल बी नाउ। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया हर फील्ड में। अगर आप इवन उसकी बात करते हैं, अभी आपको बताऊं, मैंने F-16 लेटेस्ट 2 दिन की बात बता रहा हूँ, पायलट, ह्यूमन पायलट उनका स्टिमुलाई होता है, उस पर बैठा हुआ था और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे विमान उड़ा रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ने F-16 को ह्यूमन पायलट से पहले गिरा दिया, क्योंकि उसे पता था, उसने कंप्यूट करके बता दिया कि ये एंगल जो है, जो जिसको हम चेस कर रहे हैं, इट इज ए डॉग फाइट, और मैं उड़ा रहा हूँ F-16 और एक आर्टिफिशियल वाला इंटेलिजेंस वाली मशीन उड़ा रही है, और मैं उसको डॉग फाइट, उसके प्लेन को उसके पीछे जा रहा हूँ। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टिमुलाई में उसे पता था कि ये 30 डिग्री का कोण लेगा, नाउ ही विल टर्न इट, क्योंकि बस उसका इतना डेटा था, उसे प्रोसेस करा, और जैसे ही उसने टर्न करा उसने उसे गिरा दिया। और ह्यूमन अभी सोच ही रहा था ये क्या करेगा, और उसने उसे 3 सेकंड का फॉरवर्ड मूवमेंट दे दी कि ये तो 3 सेकंड के बाद 30 डिग्री पे राइट टर्न मारेगा। उसने वहीं पे एम करा और वहीं पे मिसाइल डाली और वहीं पे उसने वो कर दिया। तो दिस इज गोइंग टू इन एवरी फील्ड। प्रोडक्टिव पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का आपने अगर बोरिंग करी और बोरिंग के बाद सैंपल आया, तो सैंपल को आप उसके नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसके लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स में अगर हमने ड्रिलिंग करके ये पता करा यार इस कुएं से तो सिर्फ 1 बिलियन बैरल्स ही निकलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नीचे रखा वही सैंपल, तो पता चल जाएगा कि पेट्रोलियम कार्बन के कितने कण हैं और हाउ मच पेट्रोलियम इज अवेलेबल अंडर दिस। तो प्रिडिक्टिव है, प्रिसाइज है, और परफेक्ट भी है, क्योंकि कंप्यूटर कर रहा है, और वो बहुत तेजी से बता देता है, नहीं 1 बिलियन नहीं, ये 3 बिलियन है। जैसे ही 3 बिलियन टन क्रूड ऑयल हुआ तो द प्रोजेक्ट बिकम्स वायबल। तो वायबिलिटी पता कर गई, आपने एक सैंपल निकाला, आपने उसे रखा, आपको तो लग रहा है कि ये वायबल नहीं है, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, बोर करूंगा करूंगा, ये प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। बट द मोमेंट इट इज गिवन टू द कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसे प्रोसेस करा, उसको पहले पिक्चर ली, प्रोसेस लिया, कैलकुलेट करा कार्बन एटम्स कितने, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और उसने उस सैंपल साइज से ही बता दिया कि नहीं इट इज 3 बिलियन। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। एंड 3 बिलियन होते ही वो प्रोजेक्ट वायबल हो गया। तो वायबिलिटी कैन बी प्रिडिक्ट, एवरीबॉडी विल पोर द मनी। आपको जो पैसे की कमी थी वो नहीं होगी, सब लोग पैसा आपको लाके देंगे, कहेंगे कि प्रोजेक्ट बहुत वायबल है, आप ड्रिल करिए और पेट्रोलियम निकालिए। तो मेडिकल फील्ड में देख लीजिए, पेट्रोकेमिकल फील्ड में देख लीजिए, और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सेंस ऑफ एड। मैं जो भी करता हूँ गूगल पे, गूगल सेंस करता रहता है और उसका एल्गोरिथम चलता रहता है। वो मेरे को 15, 20, 30 दिन बाद उसे पता चल जाता है कि अरविंद अग्रवाल 7 बजे करीबन अपना गूगल शुरू करता है, और 7 बजे वो कुछ मतलब मूवी देखता है या स्पोर्ट्स देखता है। तो और उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस, जैसे मैं कोई सपोज करो मैंने कहीं टिक करा कि मैं तो ली की जीन्स पहनता हूँ, तो ली की जीन्स का ही वो ऐड दिखाएगा मेरे को, क्योंकि उसने देख लिया कि व्हाट इज माय प्रेफरेंसेस, एंड ही विल शो मी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सेम कंपनी, एंड कंपनी विल पे गूगल टू नो द माय प्रेफरेंसेस सो दैट ही कैन शो द एड एंड आई कैन बाय इट। तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। और जैसे आर्य कॉलेज इंजीनियरिंग का कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो आर्य कॉलेज का हमने अगर उस पर प्रिडिक्टिव लगा दिया
तो बार बार आर्य कॉलेज का ऐड दिखाएगा, तो मेरे पैसे वैल्यू फॉर मनी भी है कि भाई इंटरेस्टेड आदमी ही देख रहा है। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है, एंड दिस इज द वे द होल ह्यूमन काइंड विल बी प्रिडिक्टिव। और हमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें नेचुरल जो मिली हुई है हमें स्मार्ट करना पड़ेगा। We will grow into a smart intelligence, computers will grow into artificial intelligence, and then only we can win it, otherwise we will not be able to win, because उनकी computing power बहुत ज़्यादा है। और ये आपको मैं, अगर if you give me a time 1 minute more, अभी 3-4 साल तक 10⁻15 की प्रोसेसिंग स्पीड हमारे ब्रेन की थी, that is पीटा, 10⁻π है, और टेरा और जीटा अब 10⁻21 तक कंप्यूटिंग पावर चली गई है। तो वो हमसे 1 मिलियन से भी ज्यादा फास्टर सोच सकते हैं, 1 मिलियन टाइम्स से फास्टर सोच सकते हैं। एंड देयर प्रोसेसिंग स्पीड हैज गॉन वेरी फास्ट। आवर प्रोसेसिंग स्पीड हैज लेफ्ट टू 10⁻15 एंड कंप्यूटर हैज गॉन टू 10⁻21। अनीता जी, इस बीच में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ जो 2 हस्तियां बैठी हैं डॉक्टर साहब के आर्या के वर्क से रिलेटेड, और जो आप सेमिनार कर रहे हैं वेबिनार की, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं AICT में था, दिल्ली में नेशनल मीटिंग चल रही थी, दहिया साहब के साथ बैठा हुआ था। MNIT में आप डायरेक्टर रहे हुए हैं जयपुर में। इंटर्नशिप पॉलिसी नेशन में आपके द्वारा बनाई गई है, जो आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। दहिया साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अरविंद जी का एक प्रेजेंटेशन, मैं अपने इंटरेस्ट में बायस होके नहीं बोल रहा, AICT में होना चाहिए। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात लगातार हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने करके दिखा दिया उनको मौका मिलना चाहिए। और आई नो यू आर वेरी क्लोज टू चेयरमैन AICT, और वहाँ के सभी लोगों के साथ आपका डेली उठना बैठना है। अगर आप बात करेंगे और इस तरह के मॉडल वहाँ पहुँचेंगे तो शायद इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा सभी लोगों को। AICT की टीम जब यहाँ आई थी, वो लोग बहुत तारीफ करके गए, बोले ऐसा वर्क हमने किसी कॉलेज में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं देखा है। एक और मोहित गंभीर जी भी थे, इसके अलावा और एक वहाँ के डायरेक्टर एडवाइजर थे, बड़े बड़े लोग यहाँ आ चुके हैं कई बार। इसके अलावा RP गुप्ता जी हमारे इंडिया अपेक्स बॉडी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। RP गुप्ता जी का बड़ा नाम है, NEI में बहुत वर्क आपने किया था गुप्ता साहब। आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की अपेक्स बॉडी में ये प्रोडक्ट छोटी बॉडीज के लिए, ठीक है अरविंद जी टाइम निकालेंगे, छोटी जगह भी कर दें, लेकिन वहां भी करवाइए। और अनीता जी, आज जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ा आपने वेबिनार, बहुत आपको साधुवाद दूंगा। आप कहें तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्टर अरविंद जी से मैं पूछ लूं, टाइम की कमी को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ा दूं। डॉक्टर साहब, यू आर ए वेल नोन नेम इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in the nation, not only in Rajasthan, in the nation. Please tell about your success story. क्या आप मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट आपने इसमें बनाए, जो भी आपके मन को अच्छे लगते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या प्रोडक्ट आपके हैं, थोड़ा सा आप बता दें प्लीज। सर, रोबोट्स तो हमारे बहुत हैं। वी हैव गॉट नैन्सी नर्स रोबोट, जो हमने अभी कोविड के टाइम बनाया, which can carry all the kinds of apparatus। और अगर इमरजेंसी क्रैश कार्ट होता है, हर ट्रॉमा सेंटर ER इमरजेंसी रूम में होना चाहिए, तो इट कैन वर्क अपॉन दैट। नैन्सी कार्ट और नैन्सी नर्स है, और जो क्रैश कार्ट को यूज कर सकती है। वी हैव जुलाई में हमने शुरू करा था, विद इन जुलाई वी हैड मेड 1 UV रोबोट, जो स्टेरिलाइजेशन कम सैनिटाइजेशन कम आर्टिफिशियल फेस रिकग्नाइजेशन एंड टेम्परेचर चेक कर लेता है दूर से ही। तो आप पहले मॉर्निंग में आप तो अटेंडेंस के लिए भी लगा सकते हैं, और उसके बाद उसका टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं। एंड इन द आफ्टरनून यू कैन टेक इट टू द वार्ड्स, और यू कैन टेक इट टू द रूम। अगर हॉस्पिटल में रूम है या नर्सिंग होम में रूम्स हैं, तो वो UVB से तो सैनिटाइज करेगा, और जो हाइपोक्लोराइड से है वो डिसइंफेक्टेंट है, उसको सरफेस पे स्प्रे करेगा। सो इट कैन जो हजार्डियस वर्क है ह्यूमंस के लिए कोरोना काल में,
तो वो पहले ही स्टरलाइज कर लेगा। आपको सिर्फ यू हैव टू मैनेज दैट स्मॉल 3 फीट रोबोट, उसको मैनेज करना है और उसको भेजना है। हम लिडार बेस ऑटोनोमस बना रहे हैं, जो कहीं पे भी होटल्स में कहीं पे भी सर्विंग करते हैं। अगर आपकी लिफ्ट काबिल है, और काबिल का मतलब है कि वो NFC से जुड़ी हुई है, मेरे कंप्यूटर से और लिफ्ट दोनों जुड़ी हुई हैं, और मैंने कमांड दे दिया कि 6th फ्लोर पे जाना है, तो रोबोट अपना आप जाएगा कॉरिडोर में, एंट्री लेगा लिफ्ट में, लिफ्ट से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि 6th फ्लोर पे ले जाओ मुझे, 6th फ्लोर पे बाहर निकलेगा और रूम नंबर 605 पे खाना दे आएगा। तो नो कॉन्टैक्ट फूड डिलीवरी कैन बी डन इन द होटल्स आल्सो। और आपने अभी जो रूबी देखी थी वो हम रेस्टोरेंट, वो है रेस्टोरेंट की दे सकते हैं। हमने अभी साइबर क्राइम दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ा बना के दिया, रोबोकॉप का नाम करके दिया है, विच कैन वर्क ऑन दी, बेसिकली इट वाज ए स्पीकिंग, वॉइस रिकग्नाइजेशन, फेस रिकग्नाइजेशन और फेशियल रिकग्नाइजेशन से, जिससे कि बच्चों को उनका वो था कि साइबर क्राइम होता क्या है, वो उनको रोबोटिक तरीके से पढ़ाना था। तो इट वाज ए बेसिकली ए टीचिंग रोबोट, एंड स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन, एंड वो अपने प्रोसेस करके वॉइस रिकग्नाइज करके आंसर देगा, परफेक्ट रोबोटिक वॉइस में आंसर देगा। तो बच्चों का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। इग्लू है, जिस कैन बी यूज इन द नर्सरी क्लासेस, KG क्लासेस, where it can be taught everything. Teacher can be behind the robot, and robot can move around the class, हर बच्चे के पास जाके उसका फेशियल रिकग्नाइजेशन करा, और उससे ये भी पता चल जाता है कि उसकी कितना कंसंट्रेशन है। एंड देन वी हैव सेल्फी रोबोट्स हैं, और देन वी हैव ए ऐश्वर्या है, जो कि जैसे कि इवेंट्स पे हम लगा देते हैं गेट पे, तो स्टॉल्स की जानकारी दे सकती है। आप उससे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आर्य कॉलेज का कौन सा स्टॉल नंबर है, तो वो बता देगी 15th नंबर है। आपको कहाँ से वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देगी, मैपिंग दे देगी, और एवरीथिंग इट कैन बी डन। तो इट इज ए प्रोसेस। जैसे लोग कहते हैं कि भाई आप रोबोट बना रहे हैं, हमने अभी ROR बनाया है, रोबोट ऑन रेल, जो कि चेफ की तरह काम कर सकता है, ऑमलेट बना के देगा आपको, और आपको वो बना के देगा, मतलब आपको थोड़ा सा हाफ वर्क यू हैव टू डन इट, एंड हाफ टू फुल वो काम करके देगा, और सब चीजें बना के देगा। और कॉफी कैफे बनाया है, जो कॉफी आपको सर्व करेगा, बनाएगा आपके लिए, और आपको सर्व करेगा। दीज आर द थिंग्स। लोग कहते हैं हमें कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, आप रोबोट्स को लगा देंगे। तो हम ये कहते हैं, जैसे देयर इज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ड्रोन शूटिंग है, मैरिज में है। तो बच्चों लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उन्होंने ड्रोन खरीदा है, मे बी 25,000 का, 50,000 का, या अच्छी क्वालिटी का खरीदा तो 1 लाख का खरीदा, और मैरिजेस में जाकर फोटोग्राफी करी। तो वो 2-3 हजार रुपए पर, या 5,000 रुपए पर नाइट पर मैरिज वो कमाने लगे। आप टैक्सी खरीदते हैं, तो टैक्सी चलाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और उसको अगले को जिसने बनाई है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस है, जिसने खरीदी है, जहाँ पे सेलिंग पॉइंट है वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट है, और जो चला रहा है वो भी एम्प्लॉयमेंट है। टैक्सी भी एज ए रोबोट ही है, तो लेकिन कमाई का साधन है, ड्रोन कमाई का साधन है। आप फोटोग्राफर को यूज करते हो, तो वो कैमरा से कमाई करता है। तो जहाँ पे भी रोबोट होगा वहां पे आदमी भी होगा। तो इट इज ए टाइप ऑफ ए मैनेजमेंट ऑफ द रोबोट के पीछे, हर रोबोट के पीछे एक मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे हम लोगों ने 30 लोगों को वो दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, एंड कमर्शियली वी आर प्रोड्यूसिंग द रोबोट्स। 30 लोगों का तो वो हो गया, सेलिंग पॉइंट पे हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, और जिसको दिया वो जो उस रोबोट को मैनेज कर रहा है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिला। एंड वी आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू गेट द बेस्ट। अब कोरोना काल में हम नो टच टेक्निक से काम करना है, जीरो एरर पे काम करना है,
और हम किसी चीज को टच नहीं कर सकते और हजार्डियस है, तो आप रोबोट को आगे भेजिए, लेकिन रोबोट को आगे के साथ साथ आपको एक आदमी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट हैज बीन क्रिएटेड। तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, और फिर इसका रिपेयर एंड सर्विसेज आएगा। इट इज अ टाइप ऑफ ए टूल विच विल हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट। कभी राजीव गांधी ने कंप्यूटर्स स्टार्ट करे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, आरबीआई एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ द बैंकिंग थे। उस वक्त भी बहुत हल्ला हुआ था कि भाई वेयर कंप्यूटर सारे खत्म हो जाएंगे, जॉब्स खत्म हो जाएंगे। आज देखिए बिना कंप्यूटर के आप चल ही नहीं सकते। हर आदमी को एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। उसकी प्रॉब्लम है कि वो अपना इतना टाइम नहीं है या वो अपना चला नहीं पा रहा। अगर कोई भी 40 to 60 इयर्स के बीच में है, उसे कंप्यूटर तो चाहिए, वो चला नहीं पा रहा या उसके पास टाइम नहीं है, तो ही इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अ कंप्यूटर, इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अ पर्सन। तो कंप्यूटर ने कोई वो नहीं लिया है, एम्प्लॉयमेंट लिया नहीं है, उसने दिया है। और बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड आईटी we become the superpower in the world. Without us the world cannot exist. आज की डेट में हम इतने बड़े आईटी के वो हैं, सॉफ्टवेयर के और आईटी के मैनेजर्स हैं हम लोग, कि द वर्ल्ड कैन नॉट रन विदाउट अस। वी आर द सुपर पावर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये रेवोल्यूशंस हैं जो जिसको हमने कैरी करा और प्रोड्यूस करा। अब रोबोटिक्स का है, आप क्या सोचते हैं अमेरिका रोबोट्स बनाएगा ना? अगर बनाएगा भी तो उसे कंडक्ट कौन करेगा? इंडियन। उसका सॉफ्टवेयर कौन लिखेगा? इंडियन। उसको अपडेट अप स्किल कौन करेगा रोबोट को? इंडियन। तो सब जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। द डिमांड ऑफ द इंडियन मैन पावर विल बी इंक्रीज्ड, इट विल नेवर गो डाउन। एंड द मोर society become technology oriented, the more people are required and the more Indians are required. और कोई कंट्री के पास इतनी मैन पावर भी नहीं है और ना ही इतनी यंग मैन पावर है कि वो सिस्टम को संभाल सके। जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना ही आदमी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और उतना ही हमारे लिए जॉब खुलते चले जाएंगे, हाई एंड जॉब। अगर किसी फैक्ट्री ने कंप्लीट ऑटोमेशन कर लिया, अब कर तो दिया, अब उसका ऑटोमेशन को सही रखने के लिए उसे 10 लोग चाहिए, कौन देगा? इंडिया देगा। So that is way I am very optimistic that we are on the right path. We should teach the artificial intelligence and robotics to our engineers. The moment they learn it, they will go to the world and they will create the jobs and they will make every country dependent on India. ये एक और मजेदार बात है आज की डेट में। अगर आप पॉलिटिकल और वो देखें, बिकॉज ऑफ चाइना, अगर आप वो देखें, एवरी कंट्री इज विद इंडिया बिकॉज उन्हें पता है इंडिया के बिना सर्वाइवल नहीं है इस वर्ल्ड का। और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, इंडियंस इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और इंडियंस को जॉब भी मिलेंगे और सब चीजें मिलेंगी। थैंक यू, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल सभी व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी मिली। अनीता जी प्लीज। अनीता जी। बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। जब हम बात कर रहे हैं, आपने बताया बीटेक भी हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन पे भी जोर दिया गया, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो मैं पूजा मैम या अरविंद सर, आप दोनों में से कोई भी आंसर करे इस क्वेश्चन को। माई क्वेश्चन इज लाइक, हम कॉलेजेस की तो बात कर रहे हैं सर, लेकिन कॉलेज में वो बच्चा उस स्ट्रीम में आएगा कि नहीं आएगा ये बाद में है। सर क्या हम स्कूल लेवल पे भी इसको लेके जाएंगे और किस तरह से इस पे आगे बढ़ना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे को आज अगर रोबोटिक्स के बारे में बात बताते हैं, तब उसके अंदर वो इंटरेस्ट और वो चार्म क्रिएट होगा। तब आई थिंक सो हाउ कैन वी मूव। क्या ये हमारी एनईपी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस तरह का कोई प्रावधान रखा गया है, या क्या हम जैसे आर्या ग्रुप एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है जिसने इसको हमने कॉलेज एजुकेशन पे तो स्टार्ट किया, डू वी हैव एनी प्लान्स टू गेट इनटू स्कूल एजुकेशन? और या फिर जैसे कोटा जैसे शहर भी है, यहाँ पर क्या आप किसी संस्थाओं के साथ एसोसिएशन करके या स्कूल के साथ आकर आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे? एंड अनदर थिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी क्या there will be something, so any one of you can answer. मैं ही जवाब दे देता हूँ।
देखिए मैडम, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ऑन द जॉब, लेकिन गवर्नमेंट की परचेजिंग पावर बहुत कम होती है। अगर वो 100 रुपया खर्च करती है तो उसकी परचेजिंग पावर 50 रुपए की होती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो 90 रुपए की हम सामान ले आते हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट दे देते हैं। तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी बट नॉट इन ए राइट वे। उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने चाहिए, स्पोक एंड हब का एक सिस्टम करना चाहिए कि एक बड़ा सेंटर बना दें और बारी बारी लोगों को उनको दिखाएं और हजारों लोग उनसे जुड़ जाएं। जैसे साइकिल का पहिया होता है, सेंटर में स्पोक होता है और उसकी स्पिंडल्स निकले हुए होते हैं। तो 100 जगह सेंटर्स छोटे छोटे बनाकर और वहां पे टीचर्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, और फिर उसकी हर चीज की टूट फूट बहुत है। गवर्नमेंट में तो आप जाइए तो बिल्डिंग्स के में जैसे बहुत ज्यादा टूट फूट, मतलब मेंटेनेंस इज अ वेरी बिग इशू। मेंटेनेंस इससे अच्छा है आप एक बहुत बढ़िया सेंटर बनाएं। कोटा में गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या AAR के नाम से बनाना चाहिए, एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स। उसमें हजारों स्कूलों को या 500 स्कूलों को या 400 अच्छे स्कूलों में जहाँ पे साइंस के अच्छे बच्चे, कमिटेड बच्चे हैं और नंबर उनका 100 से 150 नंबर है, उनको बुलाएं, 6 दिन की वर्कशॉप करें और ऐसे करके उनको वहीं पे वो दें। और उसके बाद अगर वो स्कूल वाला या गवर्नमेंट सोचती है ये स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है तो वहाँ पे छोटी लैब लगा सकते हैं, जो कि 7वीं 8वीं 9वीं या 8वीं 9वीं 10वीं के लिए इंक्लिनेशन पैदा करें, इंटरेस्ट पैदा करें, और लर्न करना है और नेक्स्ट लेवल की लर्निंग करनी है तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे जाएं और वहां से सीखें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फायदा क्या है? आपने एक जगह बहुत अच्छी चीजें बना दी, सब जगह अच्छी मशीनरी लगा दी, मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा दी आपने, ट्रेनिंग और आई मीन सॉफ्टवेयर भी लगा दिए, तो उसको एक बार में ही सारा सिस्टम समझ में आ जाता है। अगर वो 6-7 दिन रहे तो ही कैन अंडरस्टैंड। और जैसे हमारे कॉलेज में हम लोग FTP कराते रहते हैं, हमने अभी 2-3 बार हम कोटा में अपने रोबोट्स भी लाए, डिस्प्ले पे डाला, इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा। तो फॉर देम इट वाज ए न्यू थिंग। अब वो हमारे कॉलेज स्कूल में आए या कॉलेज में आए और देखें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमने ये वैसे प्रोसेस शुरू कर रखा है, गवर्नमेंट ने भी शुरू कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास टीचर्स भी नहीं है। इवन दे if they buy the give the money for the lab, अटल टिंकरिंग लैब के नाम से चलता है और 7 लाख रुपीस गवर्नमेंट देती है, ग्रांट देती है, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब है। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ए वेरी आउटस्पोकन पर्सन। जब मैंने फर्स्ट टाइम अटल टिंकरिंग लैब का वो देखा, क्या क्या खरीद सकते, मतलब उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है नीति आयोग का, तो मैं तो वो दंग रह गया कि वो तो पहली क्लास का, मतलब the whole thing can be brought in 20,000 rupees, जिसकी गवर्नमेंट 7 लाख रुपए दे रही है और उसकी वैल्यू 0 है। You cannot make anything, you cannot do anything, you cannot create anything, कुछ भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं, गवर्नमेंट हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क, नीति आयोग कैसे पैसे दे देता है इतने उसका। और उसके बाद उसको पढ़ाने के लिए हमारे को AICT ने KV2 महेश्वरी पब्लिक स्कूल और 2-3 स्कूलों को दे रखा है, मार्क करके दे रखा है कि आप इनके स्कूलों में जाएं, वर्कशॉप करें, सेमिनार करें और आपकी इंजीनियरिंग फैकल्टी वहाँ के साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को रोबोटिक्स सिखाएं। हम जाते हैं 3-3 दिन के वो है, लेकिन हम अपनी गाड़ी भर के ले जाते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हैं। आप लोगों ने तो हमारी लैब देखी हुई है। तो हम मतलब 16 मोटर्स को इंटीग्रेट करके एक स्पाइडर बनाया जो माइंस को ब्लो कर सकता है, तो उसका इंटीग्रेशन है, चलना है, चलाना है, तो इट इज अ ह्यूज थिंग। बच्चों को उससे पसंद आता है। I don't know. Very rightly said, Agrawal sir. Madhvi Saxena here. I would also like to comment on this because I myself a technical person. मैं खुद एक engineer graduate हूँ from MNIT, and I know this thing कि जो हमारी generation के लोग हैं जो आज teachers का role play कर रहे हैं, वो खुद ही trained नहीं है इस चीज के लिए।
और जब तक एक शिक्षक खुद ही किसी चीज के लिए शिक्षित नहीं होगा तो वो कैसे आगे के बच्चों को इस चीज की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटर्स के लिए कि हाउ ब्यूटीफुली दे एक्सप्लेन एंड दे क्रिएट द इंटरेस्ट इन द पीपल, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स वहां पर। लेकिन उसके लिए उसकी संपूर्ण जानकारी पहले उस शिक्षक को तो हो। तो फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम डेफिनेटली इज द मोस्ट important role before training the kids and the students. It is important to train the faculties first. That's absolutely correct. और दूसरी चीज जो आपने कही, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बात की, तो यहीं पर ही आती है एक मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम। और यहाँ पर आपके रोबोट्स डेफिनेटली मॉनिटरिंग करने के लिए होने चाहिए। हाई मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम दैट इज रियली अ ग्रेट प्रॉब्लम सर। वो है, वही शायद प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को डिफरेंशिएट भी कर पाता है बहुत बार। तो वो डेफिनेटली है। एंड आई होप कि ये जो सेशन चल रहा है इसमें जितने भी लोग हैं जिनमें विभिन्न शंकाएं थी कि ये उतना बेनिफिशियल होने वाला है नहीं, तो जितने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड जितने लोग जो सीनियर्स हैं जिनके बच्चे पास आउट हो चुके हैं और जिन तक बहुत से लोग आते हैं कि आप हमें बताइए हमें क्या करना है बच्चों को, तो नाउ वी ऑल हैव दैट कि भैया देयर इज आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज इन जयपुर। आई एम माई सेल्फ फैकल्टी फॉर फिजिक्स और मैं डील करती हूँ बहुत सारे बच्चों को सर, एंड आई वुड लव टू कम एंड देखेंगे आपका इंस्टीट्यूट। माधवी जी, मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही एडमिशन ले लूं आर्या में जिस तरह मैं चल रहा हूँ, तो मेरे बचे हुए साल बहुत क्वालिटी लाइफ हो जाएगी मेरी। मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली सर एक आने वाले हैं। भारद्वाज साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कभी गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा और आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल रुपी फ्रॉम द गवर्नमेंट, नेवर। आप क्योंकि वो स्लो डाउन करते हैं काम आपको, कर रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है, स्लो डाउन करते हैं आपको। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कोटा में एक रोबोटिक सेंटर डाल देता हूँ, ट्रेनिंग सेंटर दिखा देते हैं, बना लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं, गवर्नमेंट के पास तो करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन 20-25 लाख रुपए लगा के एक सेंटर बना लेते हैं और कोटा के स्कूलों को जोड़ते हैं, उनको दिखाते हैं, हफ्ते हफ्ता हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। Yes sir, yes sir, that these workshops will definitely work sir. सर कल अनीता जी मुझे कोई स्कूल में आप जगह दिलवा दें तो हम इंस्ट्रूमेंट हम लगा देंगे, अगर आप जगह दिलवा दें। So we can definitely talk about this. जगह दिलवा दें तो हम लर्निंग और टेस्टिंग मेंटेनिंग प्रपोजल हम ISTD और ज्ञानद्वार का में ही एक बाकायदा लैब एस्टेब्लिश कर लेते हैं। लेट अस एस्टेब्लिश अ लैब एट प्लेटफॉर्म ऑफ Kota Gyanwar and ISTD. We have our national president also with us, and we have our past president also. So they will also add on and they will also support us. ISTD will also love to be a part of it. Kota is full of knowledge. Kota is full of knowledge क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन है सर, वो है ना बहुत बड़े बड़े वो हैं। तो सर DCM है, चंबल फर्टिलाइजर। सर ये अनीता जी ने बड़ा काम कर रखा है। कल मुझे एक चीज बोल रही थी, मैं बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ सबके सामने, शी इज सच ए डायनेमिक लेडी। शी टोल्ड मी यस्टरडे कि सर मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ अरविंद जी, और मैं एक सीरीज चलाऊंगी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक्स की। मैं बोले मैंने एक मेरे दिमाग में आ गया कि बच्चों को ये चीज सीखनी चाहिए, और जब जयपुर में आर्या में इतनी फैसिलिटी है तो मैं बार बार इनको तकलीफ दूंगी। मैंने कहा बिल्कुल सर, और मैम तो एवोसेल बहुत काम कर रहे हैं, ये करेंगे। आई कैन एस्टैब्लिश ए फुल लैब, और जैसे फ्रॉम डिजाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने देख रखी है, अनीता जी ने देख रखी है, डिजाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग का लैब हम लगा सकते हैं, बस प्रोवाइडेड आप कोई हमारे को जगह जरूर दे दे, क्योंकि दैट इज ए वेरी बिग कॉस्ट, रिकरेंट कॉस्ट है कि भाई अगर किराया देना पड़े या वो देना पड़े। सर इन्होंने बड़ी इंडस्ट्री सब पकड़ रखी है, DCM वगैरह, चंबल। इनका कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कोटा में जो इनकी मेंबर नहीं है? अनीता जी जगह का सर जो कह रहे हैं, आप तुरंत कंफर्म करिए कि जगह की दिक्कत नहीं है, बोलिए प्लीज फास्ट। देखिए जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए इतने बड़े व्यक्ति नेशनल लेवल के लोग बैठे हैं, 2000 स्क्वायर फीट की जगह दे दें हमें। इस बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये बैठी हूँ ना, मैं सर यहाँ ऑफिस लेके बैठी हूँ, यहीं पे स्टार्ट करेंगे हम, डोंट नॉट वरी, वी हैव अ गुड स्पेस। अनीता जी मैं भी कुछ Yes sir, we have our past national president Yogesh Upadhyay with us sir. ISTD का भी योगदान आना चाहिए। आएगा। नहीं मैं तो पहली बात है, मैं जो आर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और पर्टिकुलरली डॉक्टर अग्रवाल एंड इनकी टीम को बहुत बहुत ही बधाई देना चाहूँगा। इंडिया का, हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है
ये पहला नहीं है। मैं तो सर आपको न्यूज चैनल पर चलवाने की कोशिश करूंगा कि आप दोनों न्यूज चैनल पे आए। और प्रेस जो अच्छा काम करती है, ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश के ब्यूरोक्रेसी ने राष्ट्रपति महोदय, ये आपका दुर्भाग्य रहा है कि आपने वो न्यूज चैनल अभी तक पकड़े नहीं जहां इनका चलता है। नहीं, मेरा तो सौभाग्य, मैं हमेशा सौभाग्य, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। जब उठो तभी सवेरा है। नहीं, लेकिन आप भी दिखवाइए सर, आप भी हेल्प करिए, बिल्कुल सही है। नहीं सर, मैं तो सर आज तीनों संस्थाओं का मिलन हुआ है। जब 3 संस्थाओं का मिलन हुआ है और आर्या कॉलेज के साथ, तो पूजा मैम को जो पता है, हमने कितने प्रयास किए यहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का, बट वी कुड नॉट डू इट। कोई ना कोई टेक्निकल और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया ही था हमारे साथ। कोरोना ने एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय कोरोना। कोरोना ने खत्म कर दिया। डॉक्टर, नहीं, लेट मी फिनिश, आई विल टेक 2 मिनट। डॉक्टर अग्रवाल का मैं दर्द समझ सकता हूँ। ये भारत सरकार के बाबुओं ने जो हमारे टैलेंटेड छात्र और छात्राएं जो कर सकते थे या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको मार दिया केवल विदेश यात्रा के चक्कर में। और आज उसके लिए आज देश भुगत रहा है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन सच। बाहर की हमारे इंजीनियर, मेरे दोनों बेटे बाहर हैं। मैं तो, मेरा बड़ा बेटा बोलता है आई विल नॉट कम बैक टू इंडिया। मेरे एक सीईओ थे, उनके बेटे ने बोलते तुम्हारा भारत, वो मानते ही नहीं कि हमारा भारत है। बिकॉज ऑफ आवर बाबूज, आवर नेता। अग्रवाल साहब, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। गवर्नमेंट का तो बोलिए प्लीज सर, प्लीज। एक तो चक्कर क्या है कि जब तक हमारी एकेडमिक्स जो आप काम कर रहे हैं, रियली आज मेरे को इतना बढ़िया, अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो बहुत कुछ मिस करता। हम क्यों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मंगा रहे हैं, हम कैसे क्यों मंगा रहे हैं, हमारे संस्था ही नहीं दे पा। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जब तक आप जैसा काम कर रहे हैं और मिलके कि हम आपका काम है जो एप्लीकेशन इमीडिएट हो सकता है। गवर्नमेंट को तो आगे आना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट को, यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने दीजिए, तो उनको करना चाहिए। जब एकेडमिक, जब इंडस्ट्री की सप्लायर बनेगी तभी एकेडमिक्स में होगा, और बाहर की यूनिवर्सिटी वही करती है। उसमें कॉर्पोरेट लेवल पे काम चलता है, रिसर्च चलती है, और वो रिसर्च को एक्सप्लॉइट करते हैं। और दूसरी चीज है टीचर्स। सर, कल शिक्षक दिवस था और मैं आपको शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहूंगा। कविता जी का साधुवाद करूंगा कि उन्होंने उसकी संध्या पे ये प्रोग्राम रखा, दूसरे दिन रखा है। और शिक्षक ही एक ऐसा वर्ग है जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, माता पिता के बाद में। लेकिन शिक्षकों का दर्द मैंने कल फेसबुक पे देखा। शिक्षक बोल रहे हैं कि पढ़ाने के अलावा एडमिशन कराओ, प्रोजेक्ट लाओ, ये करो, वो जो जिस तरह का टॉर्चर शिक्षकों का हो रहा है, और गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि जब आपकी संस्था जैसे उनको बाकी जगह पैसा, व्हाई कांट दे गिव मनी टू अ प्राइवेट कॉलेज के भाई शिक्षकों की एटलीस्ट पेमेंट आप देंगे तो गवर्नमेंट एक कॉलेज भी अच्छा सुविधा दे सकता है ना, कि उनको रिसर्च विंग होगी तो इससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट। और मैं पूना में एक पारी है, प्रिसीजन ऑटोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कराऊंगा। वहाँ के जो हेड एचआर मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मैं देखो 1-2 दिन में ही आपको कनेक्ट कराऊंगा, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगा जो आपने वीडियो और भारद्वाज साहब जो बता रहे थे आपके बारे में। क्योंकि मैं तो, क्योंकि कम्युनिकेशन में सुनना भी जरूरी है, तो मैं श्रोता हूँ, श्रोता के बाद बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग सुनने को कम्युनिकेशन नहीं मानते। थैंक यू वेरी मच, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं आप सबको। थैंक यू। जी 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 सर, मैं यहीं पर हमारे राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नटराज रे साहब का निवेदन है, वो काफी देर से हैं और उनको फिर निकलना है, किसी दूसरे वेबिनार को ज्वाइन करना है। सो मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर नटराज रे टू ऐड ऑन। यस प्लीज सर, ही इज अ प्रेसिडेंट। Yeah, just one thing, Anita ji, thank you for organizing this. I was listen some portion. Thank you, Juget ji, for adding on behalf of ISD. Tell ISTD is ready. ISTD National Office, we have a space is Delhi. ISTD is ready to connect for the space. Space is not a constraint. Very soon, our team will talk to you. Keep the space from Delhi. And we will start an ISTD national office. अनीता जी, पहला ISTD बाद में कोटा है। थैंक यू अनीता जी। पहला नेशनल ऑफिस देखने पड़ेगा हम लोग को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस we will establish the national office Delhi, then Kota will the second Delhi. Thank you अनीता जी। Thank you sir. Thank you very much sir for a big support by you.
Thank you very much. We will do it in Delhi first, and we will give the proposal. Space is not a constant for us. Space is sufficient. Space is there, and we will do it, and we will implement this project in our national office. सर आई मस्ट टेल यू, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपने कॉलेज में होती है, भारद्वाज सर ने भी देख रखी है, मैडम ने भी देख रखी है, एंड वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग। हम आरटीयू को स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक लैब दे रहे हैं सर। उन्होंने ऑल इंडिया टेंडर निकालकर हमारे को बस परचेज ऑर्डर निकलने ही वाला है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। we are chosen as a vendor to establish a robotic lab in Rajasthan Technical University. तो मैन्युफैक्चरिंग की जनरली सर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है। तो आई एम विलिंग टू सेट अप 2 और 3 सेंटर्स जिसमें हम लोग बच्चों को सिखा सकें, बच्चों को हम इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो दिल्ली में भी वी कैन स्टार्ट, Delhi we have a very good space. We have a good space. So we can start a robotic lab there also, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, अनीता जी अगर आप 1 मिनट, अगर आपके जब लैब विजिट करी थी तो आपने मुझे बहुत ही बेहतरीन एक डीटीएम मशीन भी बताई थी, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप उसके बारे में भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बस एक चीज बीच में बोलूंगा, दहिया साहब यहाँ से जाए नहीं, आप AICT में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 1 मिनट का कमेंट लास्ट में जब अरविंद जी बोल रहे हैं, दहिया साहब आर यू देयर ना? दहिया जी हेलो, आपका यार माइक चालू कर लें। दहिया साहब बोलना चाहेंगे आप थोड़ा सा? बाद में लास्ट में एक बार अरविंद सर का पूरा हो जाए तब। मैंने कहा कहीं आप चले नहीं जाएं, क्योंकि AICT में भी बात कर लेते हैं। हाँ नहीं, AICT में अपन को प्रेजेंटेशन करवाना है साहब। ये नेशन, ये बात आर्या की नहीं है। देखिए आर्या इतना बड़ा काम कर रहा है, नेशनल लेवल पे ये चीज आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ आप और हम लोग मिलके AICT भी बात करें कि एक बार प्रेजेंटेशन हो, कितने बड़ा काम इन्होंने किया है। तो दहिया साहब 2 मिनट वेट कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं? आप हैं अभी प्रोग्राम में? हाँ मैं हूँ प्रोग्राम में, और अवश्य आपके आदेश को कैसे मैं टाल सकता हूँ? मैं नहीं साहब, आदेश नहीं है, मेरी विनती है, आदेश नहीं है। देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है, मुझे ये लगता है अगर इस एज में मैं बार बार कहता हूँ इंडिया विल बी सुपर पावर, लेकिन अगर अच्छे लोग, अभी देखिए उपाध्याय साहब यहाँ दिख रहे हैं मुझे सामने, डॉक्टर उपाध्याय ने अभी साफ कहा पॉलिटिक्स, और ये दुनिया भर में इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, मैं खुद इसका विक्टिम रहा हूँ सालों, मैंने देखा है। लेकिन जैसा अरविंद जी ने कहा, हमने कभी निगाह इधर उधर नहीं डाली, खुद के भरोसे पे हम आगे बढ़ते गए। आर्या ग्रुप यही कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर रही है, इसको नेशनल लेवल पे प्रोपोगेट करने का एक ही तरीका है कि AICT में इनका प्रेजेंटेशन हो। और आप जैसे व्यक्ति जब वहाँ बोलेंगे, इंटर्नशिप पॉलिसी आपने बनाई है, मैंने खुद वहाँ आपके बगल में बैठ के सब कुछ देखा है, तो मुझे पता है। तो ये न्यूअर टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें भी आप जो है थोड़ा सा आप बोल भी सकते हैं कि ISTD अनीता जी, वेरी यंग एंड डायनेमिक लेडी ने जो प्रोग्राम किया था वहाँ आपने इसको देखा, और अब इसको नेशन में आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद अग्रवाल साहब से, आप अपनी बात अनीता जी जो आप DTM मशीन के लिए सर बताएं। DTM मशीन इज ए फेमस मशीन डेवलप्ड बाय यू। देखिए वो डायग्नोस्टिक थेरापेटिक मशीन है। अब हमने उसका नाम थोड़ा आसान कर दिया। इट इज ए लाइक मेडिकल कियोस्क एंड इट कैन वर्क। अगर हम उस मशीन के साथ एक पैरामेडिकल स्टाफ रखें तो इट कैन वर्क एज ए MBBS डॉक्टर। और जो MBBS डॉक्टर जितना जानता है वो मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड है। मोर देन 50 डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं, और उसी वक्त उसकी अब तो टेली मेडिसिन का बहुत ही कोरोना की वजह से बहुत जल्दी विस्तार हो गया। हम लोगों ने इंटरफेस इतना अच्छा बनाया है कि आपकी डिजिटल हार्ट साउंड हाँ यहाँ पे सुनी, जयपुर में सुनी, और हमने सपोज करो दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट को सुना दी, या ECG भेज दिया, या उसकी वैल्यूज भेज दी, तो ही कैन विद द काइंड ऑफ द डायग्नोस्टिक, मतलब उसको कुछ ना कुछ आपको टूल तो देना पड़ेगा। और आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दी तो एक कार्डियोलॉजिस्ट विच कैन नॉट बी देयर इन ए स्मॉल विलेज, छोटे विलेज में नहीं है या कस्बे में नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं पहुंच सकता, ENT स्पेशलिस्ट नहीं पहुंच सकता, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम लोगों ने एक मशीन, पोर्टेबल मशीन है, और वो एक कियोस्क की तरह काम करती है, और वो सब चीजें कंसल्टेशन में मेरे साथ, मैं उसके साथ पीछे मेडिकल KPO लगाऊंगा, नॉलेज बेस्ड वो लगाऊंगा, जिसमें 10 डॉक्टर हर समय बैठे रहेंगे,
तो वी कैन गिव, अगर वो 500 मशीन भी 500 जगह लगा देते हैं तो आप समझिए 10 डॉक्टर 500 जगह अवेलेबल हो गए। अब आप बताइए एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट कितने लोगों को कवर कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हमने अगर 50 मशीन लगा 500 मशीन लगा दी और उसके पास 10-12 पेशेंट उसके कार्डियोलॉजिस्ट के आ गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के आ गए, ईएनटी के बहुत पेशेंट हैं और स्किन के बहुत पेशेंट हैं और गायनेकोलॉजिस्ट के बहुत पेशेंट हैं, लेकिन वो कस्बे और उसमें नहीं पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंचा, बस स्टेशन पे नहीं पहुंचा, सडनली कोई इमरजेंसी में आ गया तो हम लोग उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो वी विल क्रिएट अ सिस्टम, इकोसिस्टम वेयर द मशीन विल बी वर्किंग एज ए एमबीबीएस डॉक्टर एंड वो एमबीबीएस डॉक्टर एक तरह से कॉन्फ्रेंस कराएगा टू द स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से और इमीडिएटली प्रिस्क्रिप्शन लिख कर आएगा, इंटरनेट पे हमारे पास आएगा, हम उसे प्रिंट आउट देंगे और मे बी हम वो उसको मतलब इंटीग्रेट कर दें तो केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ भी उसी वक्त आ जाएं। तो वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, being giving a primary health care, say tertiary health care, then pharmacy, then diagnostic, every aspect of the medical treatment will be touched and will be managed by that kiosk. ये हमारा उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 50,000 लोगों को तो नौकरी दें हम लोग। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड है, एक मशीन के साथ एक आदमी रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट लिंक हो गई वो, and suddenly we will have 50,000 MBBS doctor at different level of the villages, कस्बे में हैं पूरे throughout India. I'm not talking about Rajasthan, I'm talking about throughout India. तो जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहा है कम से कम वो मशीन पहुँचेगी, बेसिक वैल्यूज देगी, उसके ऊपर कंसल्टेशन होगा, वीडियो कंसल्टेशन से भी बात करके उसकी प्रॉब्लम समझ के उसको उसी वक्त प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, emergency में prescription, and after 1 or 2 days when he can assess a better face-to-face doctor, then he can go to the face-to-face doctor. Otherwise emergency में वो orthopedics का भी है, हम we are trying to get a scanner, हम स्कैनर ही बनाना चाहते हैं जो स्कैन करके बता दे कि हड्डी टूटी है या क्या हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम चीजें जोड़ते जाते हैं, हमारा इंटरफेस तो तैयार है, कस्टमाइज्ड हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ एपरेटस जोड़ते जाते हैं, आई कैन डू आई का मैं क्योंकि डायबिटिक आई बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर की आई बहुत कॉमन है, आई कैन ट्रांसमिट दैट द फोटो ऑफ द आई टू ए आई स्पेशलिस्ट नहीं मिलता है तो वो फोटो देख के वो बता सकता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप अभी तो ये इंटरमली 2-3 डेज के लिए तो आप ऐसे मैनेज करें एंड देन कंसल्ट विद ए प्रॉपर आई। वो तो we are trying to do it, but every time we add a instrument to the machine it increases the cost. अब वो कॉस्ट फैक्टर बहुत मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ठीक है, पीपल आर देयर टू हेल्प अस आउट, एनजीओज हैं, दे हैव अप्रोच्ड अस कि हम लगवाएंगे, बहुत सारी सोसाइटीज हैं वो कह रही हैं कि हमारे आप कंपाउंड में लगा दें, इमरजेंसी में आपका अगर सेंटर अवेलेबल है 24 आवर्स चलेगा तो एक तरह से कोई भी इमरजेंसी मैनेज कर सकती है। और ह्यूमन लाइफ तो जैसे कि तो वैल्यू ही बहुत है, तो अगर हम साल में 10 पेशेंट को भी बचा पाए तो इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट ऑन आवर पार्ट, क्योंकि हम नेबुलाइजर भी रख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख रहे हैं, एम्बू बैग भी रख रहे हैं, वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इट, रेफ्रिजरेटेड बहुत सारी चीजें रख रहे हैं जिससे कि पेशेंट को बचाया भी जा सके, देन देयर ओनली। Right, sir. Thank you so much. Thank you. Bharadwaj sir, you have a question? हाँ नहीं अनीता जी, अभी टाइम है अपन को कंक्लूड जैसा आप चाहें। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ने काफी कुछ डिटेल दी है, या फिर मैं एक क्वेश्चन पूजा जी हैं अभी, तो मैं पूजा जी से एक क्वेश्चन, एक मिनट का क्वेश्चन है, लंबा नहीं है। पूजा जी, आपने बहुत लोगों के, कुछ लोगों के जब बाइनिक हैंड लग रहे थे जो अरविंद सर और आर्या टीम ने बनाए, आपने वहाँ देखा है उनके किस तरह के भाव उनके चेहरे पर थे। मैंने खुद ने ये महसूस किया, आप बहुत खुश थी उस टाइम कि जो लोग हाथ से वर्क नहीं कर पा रहे थे अब उनके हाथ लग गए हैं।
तो किस तरह की फीलिंग उनकी थी, या रोबोट्स जो है तरह तरह के आप जब सप्लाई कर रहे हैं तो लोगों को कितनी खुशी हो रही है उन रोबोट्स को देख के, चाहे वो रूबी रोबोट हो चाहे रेस्टोरेंट रोबोट हो। रेस्टोरेंट की इनकम 3-3 4-4 गुनी बढ़ गई। अभी कोविड की बात मैं नहीं कर रहा, कोविड के बाद तो पूरा चेंज हो गया। तो थोड़ा सा क्विकली अगर आप बता पाए कि जो गांव वाले के, एक मैंने देखा था जब हाथ लग रहा था वहाँ अरविंद अग्रवाल साहब ने लगवाया, जो कि किस तरह की फीलिंग उसके आई, थोड़ा सा अगर आप बता रहे हैं इस चीज को जल्दी से। मैम सर, मैं मानती हूँ कि हमने जितनी भी रोबोटिक्स में रिसर्च करी है, हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है बायोनिक हैंड। क्योंकि जब ये बायोनिक हैंड की बात चली थी तब डी.आर. मेहता साहब ने ये भी बताया था कि MIT US में ऑलरेडी उनको एक रिसर्च लैब अलॉटेड है और जो बायोनिक हैंड पे काम कर रही है, बट वो इसलिए बायोनिक हैंड नहीं बना पा रही है क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी और वो 2.5 लाख से नीचे नहीं ला रहे थे, वो भी एक मैकेनिकल हैंड। तो कोशिश ये थी कि वो इतने पैसे नहीं खर्च करके कॉस्ट को कम करना चाह रहे थे। और जब ये हाथ हमने बनाया और लगाया, उससे पहले मुझे नहीं पता थी कि किसी चीज का ना होना कितना बड़ा आपको तकलीफ दे सकता है। जैसे कभी हमारे को एक उंगली में भी अगर चोट लगती है और उससे काम नहीं होता, तब हमें पता चलता है कि कितनी तकलीफ दे हो सकती है जिंदगी अगर किसी भी पार्ट को कुछ भी तकलीफ हो। तो जब उन लोगों से मेरी बात हुई, मुकेश हैं जो हमारे पहले MPT थे जिनको लगाया था, और उनके एग्रीकल्चर वो में हार्वेस्टिंग के टाइम जो वो थ्रेशर होता है उसमें वो डालते हुए उनका हाथ कट गया था रिस्ट के पास से। तो उन्होंने बोला कि मैम, हाथ ना होना कितना बड़ी प्रॉब्लम है ये तभी पता चला। मतलब मुझे पता है मैंने जीवन कैसे गुजारा है, अब मेरा हाथ जो ये काम कर सकता है, मुझे लगता है कि अब मेरी नॉर्मल जिंदगी वापस आई है। जबकि उनके हाथ बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ, लिखने का काम, पकड़ने का काम, पानी पीने का काम, मोबाइल चलाने का काम, ये छोटे छोटे फंक्शंस को हाथ कर सकता है। तो मेरे को ये बड़ी खुशी हुई कि किसी चीज की कदर उसको खोने के बाद होती है। और जितने एक और यंग लड़का था, एक आगरा से लेडी थी, हमने 3 लोगों के हाथ जब लगाए तो वो जो उनकी खुशी, उनके परिवार की खुशी, वो देखकर एक बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं। और जो हम दूसरे रोबोट्स बना रहे हैं उसका इतना एप्रिसिएशन हमें मिल रहा है कि कोई भी कहीं से भी आकर जब उनको देखता है, तो जब हम उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाते हैं कि ये डिजाइनिंग से देखिए यहाँ ऐसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सब यहीं कर रहे हैं, तब उनको विश्वास होता है कि वाकई में ये सिर्फ असेंबली का पॉइंट नहीं है कॉलेज, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो R&D पे काम कर रहा है। अभी जैसे सर ने बताया, बिल्कुल एकेडमिक्स जो एकेडमिया है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनका मेन रोल ये होता है जो इंडस्ट्री इमीडिएट प्रॉब्लम फेस कर रही है, हम लोगों के पास वो प्रॉब्लम्स आए और हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करके उनको इमीडिएट आंसर्स दें। यही बाहर की यूनिवर्सिटीज कर रही हैं और यही हमारी कोशिश भी है आर्या की कि हम करें। जैसे पहला रोबोट जब हमने बनाया, किसी ने हमें बोला मुझे शादी में एक ऐसा रोबोट चाहिए जो जयमाला को लेके आए वर वधू के पास और लोगों की फोटो खींचे वहां पे खड़े होकर सेल्फी। तो सेल्फी पॉइंट और वो हमने चैलेंज लिया, हमने एक ऐसा रोबोट बनाया जो थाली में वरमाला लेके आया दूल्हा दुल्हन के लिए, और साथ में वहां पर खड़े होकर हजारों ही लोगों ने, वो मेन अट्रैक्शन था उस शादी का, और उन्होंने फोटो खींची और वो फोटो रोबोट सेल्फी खींचने के बाद लोगों के फोन पे ट्रांसफर भी कर रहा था। तो जब जरूरत आती है, ऐसी किशनगढ़ में जब फूड पार्क लगा तब हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, आप एक ऐसा किसान रोबोट बनाएं जो हमारे फूड पार्क के बारे में मारवाड़ी में किसानों को जानकारी दे। तो हमने एक ऐसा रोबोट क्रिएट करा। तो जब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आती है उसके रिलेटेड हम लोग रोबोट्स क्रिएट करते हैं। ऐसी किसी ने हमें बोला मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जो खाना डिलीवर करे, तो हमने एक ऐसा रूबी रोबोट क्रिएट करा जो खाना डिलीवर करता है। फिर उनका ये आया कि मुझे बिल के लिए भी एक रोबोट चाहिए, तो हमने एक वसूली रोबोट बनाया जो जाकर बिल मांगता है, आपसे पूछता है आपका मतलब आपको खाना कैसे लगा, आपको जगह कैसी लगी। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे हम लोग इस पे डेवलपमेंट करते गए, और मुझे खुशी है कि आज हम लोग रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पायनियर हैं। और अभी एक अनीता जी ने भी प्रश्न पूछा था, क्या स्कूल के बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए? बिल्कुल मैम, हमें सिखाना चाहिए,
क्योंकि मैंने बहुत बार रियलाइज किया है या मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं जो बच्चे 90% एंड अबव के हैं और उन्होंने साइंस स्ट्रीम ली, बट आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान उनको जब एक प्रेशर में डाला गया तो उनको ये रियलाइज कराया गया कि आप साइंस या इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने हैं, और वो बच्चे इंजीनियरिंग को छोड़कर, साइंस को छोड़कर आर्ट्स या कॉमर्स जैसे कोर्सेज पे मूव कर गए। तो एक तरह से जो ब्रिलियंट ब्रेन है वो वेस्ट हो जाता है जब हम लोग उसकी साइंटिफिक एनालिटिकल माइंड को, अगर हम उसको 6th 8th में, वैसे जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने कहा है कि 6th to 8th ग्रेड हम लोगों को, बच्चों को इंटर्नशिप्स करानी चाहिए, जिससे बच्चे जाएं और देखें कि किस तरह की अलग अलग फील्ड्स में काम हो सकता है। 6th क्लास में कोडिंग उन्होंने कहा है कि हमें करानी चाहिए। अगर बच्चे को ये एक्सपीरियंस दे दिया जाएगा 10th क्लास तक और उसको समझ आ जाएगा नहीं मेरा इंटरेस्ट और पैशन इंजीनियरिंग में है आगे जाकर, तो वो आगे जाकर साइंस स्ट्रीम को नहीं छोड़ेगा और उसको कंटिन्यू करेगा। एंड आई थिंक इंजीनियरिंग इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है, टाइम टाइड इन टेक्नोलॉजी, दे से वेट फॉर नन, so we have to move with the technology. Yes, it is a two-edged sword which can be destructive as well अगर उसको सही टेक्नोलॉजी तरीके से यूज नहीं करी, but yes, this is the way ahead if we want to achieve big in life. Thank you sir for giving me the opportunity. थैंक यू मैम, बहुत सही आपने बताया। अनीता जी अगर आप कहें तो ओनली फ्यू सेकंड्स टू दहिया साहब ऑल्सो, आशीर्वाद देने के तौर पे दहिया साहब थोड़ा सा बोल देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मतलब आर्या जो इतना बड़ा काम किया है, कैसे इसको देश में बढ़ाएं सर, जिससे हमारे देश के अंदर बाहर से जो खरीदारी हो रही है चाइना से, उसको बिल्कुल हम रोक दें। क्या जरूरत है सर? अभी आप प्रेसिडेंट साहब भी बोल रहे थे, पास्ट प्रेसिडेंट आईएसटीडी के, क्या जरूरत है जो हमारे यहाँ खुद बन रहा है। अनीता जी ओनली हाफ ए मिनट, दहिया साहब प्लीज, लगातार दहिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं तो उनकी बात भी सुनना। और आप तो माधवी जी आप तो एमएनआईटी में पढ़ी हैं, आपके डायरेक्टर रहे हुए हैं दहिया साहब। साहब बोले प्लीज। धन्यवाद साहब अग्रवाल साहब, और मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि अग्रवाल साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। जब मैं एमएनआईटी में डायरेक्टर था तो हम भी मेहता साहब के साथ में जयपुर फुट पे एमएनआईटी को जोड़ने की हमने कोशिश की थी कुछ काम करने के लिए। किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आप अग्रवाल साहब कह रहे थे, उनसे पहले भी मैडम कह रही थी कि इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये सब जुड़ा होता है एक के साथ एक सीक्वेंशली। एक और भी पॉइंट आया था बीच में कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, टीचर्स को भी ट्रेन करने की आवश्यकता है। आज के दिन अपने राजस्थान में भी और पूरे देश में अभी भी टीचर्स की कमी है हायर एजुकेशन में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब को पढ़ा सकें। इसके लिए एआईसीटी ने कुछ एकेडमी खोलने का प्रोग्राम किया हुआ है, जो करंट आजकल के जो टॉपिक आ रहे हैं, डेटा माइनिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दिस डेटा साइंस की बात जैसे कर रहे थे आप लोग, तो अपने जयपुर में भी एक सेंटर, ये एकेडमी खुलने वाली है, तो उसका काम शुरू हो गया है। तो जगह जगह ये एकेडमी भी खुलेंगी जो एआईसीटी इसको कर रही है। इसमें एक चीज़ मैं और अग्रवाल साहब को कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये स्कूलों में भी इसको डेमो कर रहे हैं, इसका एक सेंट्रलाइज्ड वे में एक सेंटर भी बन जाए, बहुत अच्छी बात है। हमारे आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, इनका काफ़ी बड़ा रोल इसमें हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग की बात जहाँ पर आती है, चाहे वो मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली, उसमें इन लोगों को भी जोड़ा जा सकता है और इनका इंटरेस्ट बनेगा और इन लोगों के प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो हायर एंड की चीज़ें हैं उसमें हम हायर एजुकेशन के लोगों को जोड़ें। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंटल काम किए हैं, ऑटोमेशन के बहुत काम किए हैं। मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट रहा हूँ कंट्री में भी और बाहर भी। मैं आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रहा हूँ 36 साल से ज़्यादा, और विदेशों में मैंने बहुत सारे काम किए हैं जाके, यूरोप में, जापान में, अमेरिका में, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे ऑटोमेशन की एक्टिविटी जो ये बात कर रहे हैं की थी। अभी भी मेरा इंटरेस्ट रहता है
मेरे ग्रैंडसन है वो भी साथ लग के कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं कि हम रोबोट्स बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और जैसा आप कह रहे हैं कि AICTE इज अवेयर ऑफ इट एंड उसको और भी आगे बढ़ावा देने के लिए हम इसको लेंगे। अग्रवाल साहब ने, मैं गया तो नहीं अभी लैब को देखने के लिए जयपुर में, जब मैं जयपुर में था तब तो मैं जाता रहता था सभी कॉलेजों में। तो अग्रवाल साहब ने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के तौर पर इसको किया, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, और इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। मैडम अग्रवाल भी बता रही थी सभी क्या क्या अलग अलग टाइप के, जैसे कोई चैलेंज आता है तो वो लेते हैं चैलेंजेस के। तो इसमें डिफरेंट लेवल पे हमको टेकअप करना पड़ेगा और उनको इंटीग्रेट करने के लिए सबको एक साथ मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। वो काम अरविंद अग्रवाल जैसे जो शख्सियत है वो कर सकते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छे से किया है। हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट को ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी के टेक्निकल इश्यूज में ना जोड़ के ना इस समय पड़े पछड़े में। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, रहेगी भी और आगे भी रहेंगी। कोई भी गवर्नमेंट हो उनका अपना ही तरीका होता है। एक बार मुझे एक गांव के सरपंच, मैं गांव में काफ़ी सारे काम मैंने किए थे डिसेंट्रलाइज एनर्जी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था एक बार एक गांव के सरपंच से कि भाई ये बोल के गए थे हम यहाँ ट्यूबवेल लगाओगे, आप ये कर दोगे, स्कूल में कुछ चीज़ें देनी थी हमें। तो उसने एक बड़ा अच्छा एक वाक्य बताया था और वो मुझे हमेशा याद रहता है। आज से 30-35 साल पहले की बात है कि सब सरकारी काम सड़क के होते हैं। तो सरकार के भरोसे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, ये सरकार के बेनिफिट जो है वो जितना ज़्यादा ले सकें। अग्रवाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि उसका 50% एफिशिएंसी होती है और प्राइवेटली 90% एफिशिएंसी होती है। कोई भी चीज़ ले लो, पैसे के यूटिलाइजेशन का या अदरवाइज ऑल्सो। तो ये अच्छी बात है, बट सरकार के बिना हम चल भी नहीं सकते हैं। तो सरकार के पास काफ़ी पैसे भी हैं। एक बीच में ऐसी बात भी आई थी कि जो एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स हैं इनबिल्ट, जिसमें आपस में जोड़ने की बात की हुई है। इवन स्कूलों को जोड़ने की बात की हुई है, सेंट्रलाइज फैसिलिटी डेवलप करें ताकि और लोग बेनिफिट ले सकें उसको। हायर एजुकेशन में भी ये बात की हुई है कि मल्टी फैकल्टी टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और धीरे धीरे करके एफिलिएटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा और हर एक कॉलेज जो सक्षम है दे विल सर्वाइव और वो अपने आप डिग्री अवार्डिंग बनेंगे। थैंक यू वेरी मच दहिया साहब, आपने बहुत बड़ी बात, टाइम का थोड़ा सा कमी ये आ रही है दहिया साहब। कहीं टेक्निकली कहीं खत्म नहीं हो जाए सिस्टम, मुझे वो लग रहा है। मैं सब क्लोज कर रहा हूँ। तो ये सब देखते हुए और जैसा मेरे से बन पाएगा, जो भी ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बन पाएगा मैं जरूर करूँगा। और RTU की बात आपने की है, वहाँ आर्य गुप्ता वाइस चांसलर हैं, अपने MNIT के ही हैं, वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। तो सबको जोड़ के और इसको जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा उतना ही बहुत बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद मुझे टाइम देने। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू आपकी एश्योरेंस के लिए। आप वाकई हेल्प करेंगे, आपकी नेचर भी ऐसी है। अनीता जी प्लीज। Thank you, sir. Now I would request before adding anything else, there are so many questions, sir. बहुत सारे major questions हैं मेरे दिमाग में। तो अरविंद सर आपसे पूछने के लिए बहुत लंबे questions हैं जो कि really need of the hour भी है, लेकिन मेरे पास time की थोड़ी सी कमी है। मैसेजेस मुझे मेंबर से भी प्राप्त हो रहे हैं इस विषय में। तो मैं रिक्वेस्ट माधवी टू सम अप क्विकली इन 1 मिनट। माइक चालू कर लें माधवी जी। Yes, thank you, Anita ma'am. And I would like to quickly sum up this session as Pooja ma'am so wonderfully explained us the importance of robotics in manufacturing industry to eliminate human errors and improve productivity. She talked about surgeries performed by robots in security and military also. She rightly said robotics is future of India. She also talked about how artificial intelligence is useful in making decisions by generating conclusions from enrolled data. And she talked about a very most wanted and most appreciated thing, that is data is currency. She in very simple language has explained how AI technology can be applied judiciously for the benefit of society in every sector. Dr. Arvind Agrawal talked about bionic hand that has been developed by Arya Group under his supervision and how it can be useful for physically disabled persons, and the complete robotic artificial hand which would play a revolutionary role in lives of many disabled people. Dr. Arvind gave a wonderful example of how artificial intelligence was more efficient than human natural intelligence pilot in launching the missile, how it can help in proving the viability of a petroleum project in petrochemical industries as well. Sir told how Google uses artificial intelligence in predicting the sense of advertisements.
Arvind sir talked about Nancy Nurse and Nancy Carts robot that they have developed, which is so useful in COVID-19 treatment also, and how no contact delivery can be done by the robots, Robocop that they have delivered to Delhi cybercrime, ROR, Robot on Roll, Igloo, Ashwarya, Cafe Robots, and so many. Dr. Arvind also talked about how the education of AI can prepare young India and produce the world leaders in robotics, production and management, sales and repairs, research and development, and generate large number of jobs throughout the world for Indians. He also talked about developing a center of excellence for kids and students, and how they are developing DTM machine, which can be used as an MBBS doctor in remote areas where medical professionals are not available, and be a boon to the society, and also generate almost 50,000 jobs all over India. And the pleasure feeling that the people have experienced by Dr. Arvind's and Dr. Pooja's efforts with bionic hand or robot is just incredible. So this is all that I would like to say, and this was a wonderful session, ma'am. Wonderful session, sir, and it would have really benefited so many people. Well, over to you, Anita, ma'am. Yes. Thank you so much, Madhavi. You have done it nicely. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Sir, I am Dr. Dahiya's MNIT product. Right, sir. I really thank each one of you, all the participants. I thank my national president and my national past president also, Ms. Dr. Nataraj Ray and Dr. Yogesh Upadhyay ji, for joining us today. And we tried to make it a show, but though it was planned just for 90 minutes, but we have already crossed 2 hours. The session is still good, and Arvind sir, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे पास questions आपके लिए बहुत सारे हैं. पूजा में आप एक और ऑर्गेनाइज कर लीजिए. आप एक और ऑर्गेनाइज कर लीजिए. एटलीस्ट कोरोना में ये है कि सब लोग अपने घर पे बैठ के आराम से डिस्कशन कर सकते हैं. ज्ञान द्वार को पूना लेके आता हूँ, उधर करेंगे. ठीक है. हाँ, प्लीज एक और ऑर्गेनाइज कर लीजिए. एंड आई एम अप टू द चैलेंज. एआई के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ कि आई कैन, मतलब सर फिर भी जाते जाते एक क्वेश्चन अभी पूछ जाऊंगी, मेरे मन में बहुत है. प्लीज. चाइना विल बी द सुपर पावर इन एआई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज आपका ये देख के आपकी लैब विजिट करने के बाद भी देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर ऑलरेडी यूजिंग एआई आल्सो, सो मेनी एग्जांपल्स. क्या हम इंडिया चाइना को टक्कर देगा सर? हम अपने आप को सोच सकते हैं एज अ सुपर पावर इन एआई? देखिए, एआई के लिए एक इंग्रेडिएंट है, दैट इज डेटा. चाइना में एक बहुत फायदा है, वो किसी भी आदमी की फोटो खींच सकता है, किसी भी पर्सन की वो मेडिकल रिपोर्ट्स ले सकता है, कि उस वहाँ पे हर चीज की उसे फ्रीडम है. वट एवर ही वांट्स टू फीड, आप मतलब जैसे मेरे बारे में वो कुछ भी फीड कर दे और मेरे को एक तरह से एक सब्जेक्ट बना दे और फिर वो एआई लगा दे. तो द चैलेंज इन इंडिया इज टू गेट द डेटा. आप देखिए, गूगल जो हमारे साथ काम कर रहा है हॉस्पिटल में, वो हमारे लिए नहीं काम कर रहा. ही इज ट्राइंग टू गेट द डेटा ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम आवर हॉस्पिटल, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, बसेस. फ्री जो वो वाईफाई देता है, वो डेटा प्रेफरेंसेस करता है. वो एक तरह से डेटा कलेक्ट कर रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर डेटा यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दे, मेरा डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दे, तो आई विल स्टार्ट क्राइंग, ह्यू एंड क्राई हो जाएगा. चाइना में उसका फायदा ये है कि वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके पास मशीनें, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रेन देखिए, एक नेचुरल ब्रेन प्लस एक आर्टिफिशियल ब्रेन शुड मेक 22. वो 22 शायद नहीं बना पाएगा. वो इंडियन का ही ब्रेन है जो नेचुरल ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला के हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैड ए कंप्लीट डेटा. Oh, that's a wonderful answer, sir. So we can really look forward, and हम लोग अगर आज प्रयास करेंगे, छोटी सी जगह से जयपुर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए कहाँ से आपने आर्या को स्टार्ट किया, and now today we are doing it in Kota. We have already got an offer from my national past president. So we are principals of Kota. आप मुझे आज ही एश्योर करें तो आज ही मैं 20-30 चीजें मैन्युफैक्चरिंग पे डाल देता हूँ. पक्का है सर, डन है. स्पेस मैंने आपको कोटा में दे ही दी है. और स्कूल मेरे साथ है, मेरे साथ स्कूल जो मेरे साथ मैम है, चेयरपर्सन है वहाँ पर, स्प्रिंग हिल्स स्कूल है सर कोटा के अंदर.
Springdale Children's School, Dr. Sujata Tathed is there with us. She is there with us from the very beginning of this session, and she's definitely going to be like one of the next platform for having this joint जो हम start करने वाले हैं, बहुत ही शीघ्र कोटा में शुरू करेंगे. Right, Sujata ma'am, on your behalf I have already confirmed. Yes. अनीता जी, मैं तो 30 सेकंड लूंगा. अनीता जी 30 सेकंड लूंगा. ये जो जैसे हम रेसिपी बनाते हैं ना बेस्ट, वो आज का जो वेबिनार है इतना बेस्ट है, जहाँ पे भरद्वाज साहब है, दहिया साहब जो है, जैसे आइसिंग ऑन केक रहता है ना, वो सहस्त्रबुद्धे सर पूना से हैं. आई नो हिम वेरी वेल. एंड अभी गवर्नमेंट एंड AICT इतने बदल गए हैं कि दे वांट टू गिव बेस्ट टू द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री. यस सर, दैट इज वेरी ट्रू. वो इन द एटीट्यूड, और वो फैसिलिटेटर्स बन गए हैं. फैसिलिटेटर हो गए इंस्टेड ऑफ रेगुलेटर. अभी चेंज बहुत आ रहा है, और क्योंकि AICT बहुत एक्टिव है, UGC भी एक्टिव है, तो वी कैन सी द बेस्ट नाउ. और क्योंकि हमारे पास MSc ME इंक्यूबेशन सेंटर भी है. अभी हमने 1-1 करोड़ के 10 वो लगा रखे हैं MSc ME के डिफरेंट लोगों के, क्योंकि वो थ्रू हमारे से ही जाएगा प्रपोजल. तो कोरोना की वजह से सब चीजें रुक गई हैं, लेकिन वी हैव गॉट 10 प्रपोजल्स टू MSc ME सेंटर. अग्रवाल साहब सबके रोबोट बनाओ, लेकिन एक तो पंडितों के नहीं बनाना, कथावाचक, नहीं तो उनकी एक ट्रेनर से टीचर. थैंक यू. उसकी डिमांड अमेरिका से आ चुकी है. आजकल शादी करने के लिए पंडित नहीं मिलते साहब. हम तो ट्रेनर सोसाइटी है, पंडितों की ट्रेनिंग करेंगे सत्यनारायण कथा के. अमेरिका में ऑनलाइन कर दीजिए सर. अमेरिका में बहुत कमी है. मतलब दे नीड रोबोट्स और पंडित्स. मैं हवन ऑनलाइन डाउनलोड करके करता हूँ ताकि शुद्ध उच्चारण कर सके मंत्रों का. मैं हवन करता हूँ, घर में हवन करता हूँ, तो डाउनलोड करके. अच्छा अग्रवाल साहब, मुझे एक क्विकली एक छोटी सी बात कहनी है भारद्वाज साहब आपकी परमिशन से, कि ये कुछ एक रूरल सेटिंग में भी अगर आप लगाएं तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट. देखिए, एक तो हम थोड़ा नीचे से कोई यहाँ पहुँचा हुआ उसको यहाँ उठाएं, और बिल्कुल यहाँ से उठाएंगे उसको, इतना भी उठाएंगे तो बहुत इम्पैक्ट होगा. तो मेरा एक ये भी सुझाव है, यू कैन थिंक अबाउट इट. कोई आंसर नहीं चाहिए इसका, बट एक रूरल सेटिंग को भी, क्योंकि अदरवाइज तो हमारे कंट्री को जब तक नीचे से नहीं उठाएंगे तो कंट्री का प्रोग्रेस ओवरऑल होने वाला नहीं है. सर देखिए, इफ यू विल आस्क फॉर मी, मेरे से बात करेंगे तो आई हैव गॉट ए क्लियर कट मैप. मेरे पास आंसर है. वी हैव टू मेक ए मोबाइल, जैसे कंटेनर बनते हैं ना सर, कंटेनर में क्लासेस लेना और सब चीजें की लैब ले जाओ आप और उनको वहीं पे पढ़ा दो, क्योंकि दे कैन नॉट ट्रेवल टू सिटीज. एजुकेशन हैज टू रीच देयर डोर स्टेप. और वहीं पे एक हफ्ते के लिए कंटेनर को खड़ा कर दो. एक हफ्ते के लिए उनको लेथ चलाना या वेल्डिंग मशीन चलाना या फैन की बाइंडिंग करना या जो ट्रैक्टर की छोटी मोटी रिपेयर्स हैं की ट्रेनिंग वहीं पे दीजिए आप. और मैं आपके रोबोटिक्स सेंटर की बात कर रहा था कि सिटी सेटिंग में से थोड़ा दूर करेंगे तो उस रीजन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, पूरा रीजन. बट एनीवे, ये काफी लंबा टॉपिक है. सर आप जुड़े रहिए, कंसोर्शियम बन जाएगा. अनीता जी हैं एक सूत्रधार, वो छोड़ती नहीं है किसी को, अगर आपको जोड़े रखेंगी इस. नहीं, अनीता जी से हम बहुत जुड़े हुए हैं जी, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं. मैं दहिया साहब की बात कर रहा हूँ. मैं आप तो जुड़े हुए हैं. दहिया साहब से भी जुड़े हुए हैं सर हम. नहीं, अनीता जी के साथ भी हम. Thank you so very much. It's time to wind it up now. I have to rush to the college now. धन्यवाद देती हूँ. हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, और जैसा कि मैंने कह भी दिया है कि हम इस जर्नी को जारी रखेंगे और आप सभी का साथ हमारे साथ रहेगा. थैंक यू सो वेरी मच पी भारद्वाज सर, अग्रवाल सर, दहिया सर, पूजा मैम, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ओवर एंड आउट. सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूंगी माधवी सक्सेना एंड हेमंत शर्मा जी को, जिनके बिना ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाना व्यवधान फ्री पॉसिबल नहीं था. सो थैंक यू सो मच माधवी एंड हेमंत शर्मा जी. Thank you. Thank you, Madhu ji. Thank you, Hemant ji. Thank you.